Ladies and gentlemen, I would like to welcome all you people, the guests, dignitaries, and the eminent speaker for the function and the seminar, the speech called The Modi and the Muslim and the True Facts. So, ladies and gentlemen, it's a unique program which Namo Brigade has conducted in this, last 4 months. Namo Brigade is the group of people who are a true fan of Modi ji and inspired and admired and his leadership quality, and we firmly believe that India requires him in this present juncture. Ladies and gentlemen, we have the guest speaker, Sufi M.K. Chisti, and our mentor, Chakravarti Sulivele, and one more guest for the day is Mohammad Baddoor, a multi-language poet from Mangalore. I request you to come out to the stage, and I request meanwhile Naresh Chennai to escort them to the dais. Okay, without wasting any time, I would like to request Mr. Chakravarti Sulivele to give an introductory speech on this program and about the Namo Brigade. Over to Chakravarti. धन्यवाद एल्रिगू नमस्कार आदरणीय सूफी संत चिश्ती साहेबರಿಗೆ मैं आपको बहुत सादर स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम के लिए इस मंच के लिए ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸೇರಿದ್ದೀವಿ ಕಾರಣ ಒಂದೇ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೇಗಿದೆ ಏನಿದೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಕುರಿತಂತೆ ನಮಗಿರುವಂತ ಈ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನ ಹೊಡೆದೋಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಳೆದ 1 ದಶಕದಿಂದ ನಾನು ಚಿಸ್ತಿ ಸಾಹೇಬರ ಕುರಿತಂತೆ ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ವಾಘೇಲಾ ಅವರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಕಳೆದ 1 ದಶಕದಿಂದ ಭಾಜಪದೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರೋ ಅಪರೂಪದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಸ್ತಿ ಸಾಹೇಬರು ಒಬ್ರು ಅಂತ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಚಿಸ್ತಿ ಸಾಹೇಬರು ಈ ತರದ ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ತರದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ದಾಗಿತ್ತು ಎರಡನೇದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಮೋ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಅನೇಕರು ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸಬರಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಕುರಿತಂತೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ನಮೋ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಅನ್ನೋದು ಏಕೈಕ ಮಿಷನ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಫಾರ್ PM ಈ ಒಂದು ಮಿಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ರೂಪುಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸಂಘಟನೆ ಈ ಮಿಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಸಂಘಟನೆಯೂ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಸಂಘಟನೆಯ ಅಸ್ತಿತ್ವವು ಮುಗಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನ PM ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಕಲ್ಪನೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು 120 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ ನಿನ್ನೆ ಬರೀ ಒಂದು ಮಲ್ಪೆ ಬೀಚ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 25,000 ಜನರನ್ನ ನೇರವಾಗಿ 2.5 ಲಕ್ಷ ಜನರನ್ನ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರೋದು ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀವಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಷ್ಟೇ ಉಳಿದೆ ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಹಿ ಇಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ತೀವಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಕಳೆದ 67 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನರನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುವಂತ ಹಿಂದೂಗಳೊಳಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿಗಳನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನ್ ನಡೆದಿದೆ ಆ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ನಾವೊಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಒಂದು ತಡೆಗೋಡೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಂತ ನಾವಂತೂ ಭಾವಿಸ್ತೀವಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ವಿರೋಧಿ ಅಂತ ಏನು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಗುಜರಾತ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ತರದ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಚ್ಚರಿ ಈ ಭಾವನೆ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರೇ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಗುಜರಾತ್ ನಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸಾಧನೆ ಈ ದೇಶದ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಅಜ್ಮೀರ್ನ ದರ್ಗಾ ಶರೀಫ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗಬೇಕು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಗುಜರಾತಿನ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೋ ಹಾಗೆ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನ ದಿಕ್ಕಿನತ್ತ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಹೊಂದಿರೋದು ತುಂಬಾ ಅಪರೂಪದ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ನಾನಂತೂ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಈ ನಮೋ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ನ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ ನಮೋ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ನ ಸಂಕಲ್ಪ ಹೊಂದಿದೆ ನಾವ್ಯಾರು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರೋರಲ್ಲ ನಾವ್ಯಾರು ರಾಜಕೀಯದ ಪಡಸಾಲೆ ಒಳಗೆ ಕಾಲಿಡುವವರು ಅಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವವರಲ್ಲ
ಆದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕನಸನ್ನು ಹೊತ್ತಿದ್ದೀವಿ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯನ್ನ PM ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮೋ ವಾಣಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಭಾಷಣವನ್ನ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತರ್ಜಮೆ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿಸುವಂತ, ಅನೇಕರ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿಸುವಂತ ನಾವೊಂದು ರೇಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ರೇಡಿಯೋ 2020 ಅಂತ ಹೆಸರದಕ್ಕೆ. ಈ ರೇಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಥ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೂ ರಥವನ್ನ ತಲುಪಿಸಿ ಅದರ ಮೂಲಕ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ವಿಚಾರಧಾರೆ ತಲುಪಿಸುವಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಇನ್ನು 2ರಿಂದ 3 ತಿಂಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಈ 3 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರನ್ನ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸದೃಢ ಭಾರತ ಕಟ್ಟುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನಿದೆ, ಆ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಪ್ರಯತ್ನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸೂಫಿ ಸಂತರಾಗಿರುವಂತ ಶ್ರೀಯುತ MK ಚಿಸ್ತಿ ಸಾಹೇಬರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. आप यहाँ आके हमारे मन को बहुत आपने खुशी दिया है. आप हमको एनलाइटन करने वाले मोदी और मुस्लिम के इस विषय के बारे में आपको सादर स्वागत करते हैं. यहाँ के नमो ब्रिगेड के द्वारा मंगलूर के सभी सज्जन नागरिकों के तरफ से हम आपको ಸಾದರ ಸ್ವಾಗತ करते हैं. ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರೋ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿರುವಂತ ಅದನ್ನ ನನ್ನ ಮಿತ್ರರು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ನಮೋ ಬ್ರಿಗೇಡ್ನೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜೋಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಅತ್ಯಂತ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವಂದೇ ಮಾತರಂ. ಜೈ ಹಿಂದ್. One of our eminent guests and the speaker for the day, Sufi MK Chisti. He is basically from the place called Surat, belongs to the state of Gujarat, and he is the head priest, Dargah Sharif, Atodra, and the founder advisor, Umma International TV channel and the Global Relief Trust, and from last 4 years, he is the chairman for Gujarat Hajj Committee, ladies and gentlemen. It's my privilege and honor to introduce one of the eminent speaker for the day. I would like to welcome on behalf of Namo Brigade and all the gathering here. I request our Namo volunteers to give away the bouquet on behalf of the welcome and the token of our love. So ladies and gentlemen, Sufi MK Chisti. And one more guest is already on the dais now, is Mohammad Baddoor. He is a multi-language poet from Mangalore. So for you also we welcome you. I request Namo volunteers to give away the bouquet to Mohammad Baddoor. We'll move on to the present topic for the day, that is Modi and Muslim. Before that, there are 2 facts already in the domain, as Chakravarti has already discussed. Gujarat has spent almost 140 crores for a scholarship to 63 lakhs Muslim students in last 10 years. Gujarat contributes highest number of Hajj pilgrims. And from the festival of tourism, almost it has generated 2 crores of revenue, and upon that 80% of the art is from a minority community. So there are a lot of true facts which is already there in the domain, but we would like to hear from Sufi MK Chisti ji, why is that so much of speculation, why is there so much of fear in the society about Modi? Over to Sufi MK Chisti. कुछ मुस्लिम इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटीज की तरफ से मोदी एंड मुस्लिम्स इस सब्जेक्ट पर ये जो फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया है, इसमें उपस्थित नमो ब्रिगेड के चक्रवर्ती जी और साथ में मल्टी लैंग्वेज पोएट मोहम्मद बद्दूर जी, नरेश सिनोई जी, रहीम जी, माइनॉरिटी कमीशंस के और जो लीडर्स हैं यहाँ, और साथ में बड़ी खुशी की बात है कि आप सब कोई डॉक्टर है, एडवोकेट है, और जो भी मुस्लिम कम्युनिटी से जो एजुकेटेड और रिलीजियस फील्ड में जिनका एक अहम रोल रहा है, मैंगलोर के, कर्नाटक के, ऐसे सारे लोगों का मैं खैर मकदम करता हूं. और आपने मुझे यहाँ बुलाया और मोदी एंड मुस्लिम सब्जेक्ट पर जो एक काफ़ी सेंसिटिव सब्जेक्ट रहा है मीडिया में और सारी चीज़ों में, और आने वाले वक्त में भी ये सब्जेक्ट जो है वो काफ़ी अहम रहने वाला है. इस सब्जेक्ट पर अपनी कुछ बातें, कुछ रोशनी डालने के लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ. तमाम मुस्लिम भाइयों का मेरा दिल से सलाम,
और तमाम हिंदू भाइयों को मेरा सादर प्रणाम। दोस्तों, खास तौर पे मुस्लिम कम्युनिटीज और जो अभी अफेयर्स चल रहे हैं वर्ल्ड लेवल पे, थोड़ा मैं ब्रीफिंग करूंगा। बेसिकली मेरा पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं था पास्ट में, क्योंकि मैं एक गादी नसीन बाय फैमिली हूं और 22 ईयर की एज में ही मैं गादी नसीन हो गया था हमारे वालिद साहब और बड़े भाई के एक्सपायर्ड होने के बाद। और डिफरेंट कंट्रीज में हमारे थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स भी है। 2009 में मैं लंदन गया था, वहाँ एक इस्लामिक चैनल, स्पिरिचुअल चैनल के जो इस्लाम का रियल मैसेज ऑफ पीस, ह्यूमैनिटी, मोरालिटी एंड स्पिरिचुअलिटी लोगों तो कन्वे करे और इसीलिए सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे और जो खुदा और रसूल के ये सही पैगाम है वो लोगों तक पहुंचे। और हम जो मुझे ऐसा लगा कि वेस्टर्नाइज कल्चर हो रहा है यूरोप के अंदर, जो हमारा कल्चर, इंडियन कल्चर, इस्लामिक कल्चर खत्म हो रहा था और पूरा कल्चर वेस्टर्नाइज हो रहा था। मतलब तो मुझे ऐसा लगा कि जनरेशन जो है वो आजकल किताबें पढ़ने और ये सारी बयानात में बैठने से ज़्यादा वो लोग टेलीविज़न का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने कुछ अपने फॉलोअर्स को बुलाया और मैंने कहा कि भाई एक इस्लामिक चैनल आप शुरू करो, ताकि अब तो ये हो गया है यूरोप के अंदर, अगर आप जो लोग जाते होंगे उन्हें पता होगा कि मुश्किल से वो लोग हमारी लोकल लैंग्वेज बोल सकते हैं। उर्दू हो, हिंदी हो या जो भी कन्नड़ हो, गुजराती हो, उनको बोलना भी बहुत मुश्किल होता है। तो मुझे ऐसा लगा कि अब इनके बच्चे जो पैदा होंगे वो तो बिल्कुल उनका पूरा सोसाइटी और पूरा कल्चर कोलैप्स हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि इंग्लिश में भी उन्हें कोई अच्छे वक्ता मिल जाए और एक अच्छी तालीम मिले और हमारा कल्चर बना रहे, हमारी सोसाइटी बनी रहे और वेस्टर्नाइज कल्चर होने से उन्हें रोका जाए और जो रियल मैसेज ऑफ पीस, स्पिरिचुअलिटी हो लोगों तक पहुंचे। आप एनसाइक्लोपीडिया पे भी सर्च करोगे तो हमारी इस चैनल के बारे में आपको सारी डिटेल मिलेगी। साथ में फिर हमने एक उम्मा ग्लोबल रिलीफ ट्रस्ट भी चलाया कि पूरे दुनिया में अगर ऐसे कोई कंट्री हो कि जहां कोई कुदरती आफतें आती है या कोई परेशानी होती है तो हमारी टीम जाके वहां रेस्क्यू करती है और उनको हेल्प करती है, विडोज को हेल्प करते हैं, जो ऑर्फन्स हैं उनको हेल्प करते हैं। तो बेसिकली मेरा ये फील्ड था और पॉलिटिक्स से मुझे इतनी नफरत थी कि मैं कभी सॉरी ये कहूंगा लेकिन वोट देने भी नहीं चाहता था कभी। और हमारे जो फोर फादर्स थे वो भी कभी वोटिंग नहीं करते थे, वो मतलब वो ये पॉलिटिक्स से बिल्कुल दूर रहते थे। लेकिन जब मैंने ये देखा इंटरनेशनल अफेयर्स, नेशनल अफेयर्स और स्टेट की, हमारे गुजरात की कुछ ऐसी पोजीशंस मैंने देखी कि बेसिकली हमारा, मैं जिस सोसाइटी से आता हूँ सूफीज़म से, तो उसमें तो काफ़ी सियासी तौर पे लोग निष्क्रिय रहते थे और मैंने सोचा कि एक ब्रिज होना चाहिए, एक वे ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए कि जो हिंदू भाइयों से भी जाकर मिले और इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन और इंटरनेशनल अफेयर्स और स्टेट अफेयर्स के रिलेटेड ऐसे भी व्यक्ति होना चाहिए कि जो दोनों कम्युनिटी के बीच में एक ब्रिज बनने का काम करे, ताकि हम हमारी सोसाइटी के लिए और बेसिकली हमारे नेशन के लिए अच्छा कुछ काम कर सके। तो फिर मैंने बीजेपी मोदी जी के वक्त में ही मैंने ज्वाइन किया और इसके पीछे काफ़ी वजह थी। एक तो मैंने इंटरनेशनल अफेयर्स तुम अभी तक के देखो तो मैंने ये देखा कि पहले तो मैंने कुरान और हदीस मैंने देखा कि इस्लाम और हिंदुइज्म, ये दो जो सोसाइटी है, पैगंबर साहब की ज़िंदगी में अगर तुम देखो तो उन्होंने हिंदू सोसाइटी के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोला और बल्कि ये कहा उसकी तारीफ में, हिंदुस्तान की तारीफ में, कि मुझे हिंदुस्तान से अमन की खुशबू आ रही है, शबा आ रही है, हिंदुस्तान की तरफ से मुझे ठंडी हवा आ रही है, खुशबू आ रही है। तो हिंदुस्तान की तारीफ में आपने कहा और फिर एक हदीस में ये भी कहा कि मैं अरब में हूँ, अरब मुझ में नहीं है, और मैं हिंद में नहीं हूँ, हिंद मुझ में है। हिंदुस्तान की तारीफ में इतनी बड़ी बात मैंने देखी और उसमें फिर रिसर्च भी किया कि ऐसा क्यों कहा होगा। तो ये पता चला कि आदम अलैहिस्सलाम, जिसे एडम कहते हो या महादेव कहते हो,
पहले पुरुष और स्त्री जो स्वर्ग में से, जन्नत में से दुनिया में आए, वो हिंदुस्तान की सरजमीन, उसी की पहाड़ी पे आए थे। और आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी था, तो वो नूर जो था वो हिंदुस्तान की सरजमीन पे आया। और मौलाए कायनात हजरत अली करमल्लाहु वजहू ने ये फरमाया कि हिंदुस्तान मकाम इब्तिदा है और अरब जो है वो मकाम इंतहा है। मानव संस्कृति का उद्भव स्थान कहा, हिंदुस्तान को मानव संस्कृति का उद्भव स्थान कहा कि सारी सोसाइटीज, पूरी कल्चर जो वर्ल्ड में जो फिर फैला वो यहीं से उद्भव हुआ। तो ये जो दो सोसाइटी, उसका मिलना, मैं ये मानता हूं कि भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए, भारत को महासत्ता बनाने के लिए, हिंदू मुस्लिम दोनों के जन कल्याण के लिए ये दोनों कम्युनिटी का मिलना जरूरी है। और उसके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए कि जो ईमानदारी के साथ काम करे, जो सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए, जिसके दिल में दर्द हो और वाकई तौर पर वो वेलफेयर के लिए, उनके कल्याण के लिए काम करना चाहिए। तो मैंने एक तरफ ये भी देखा कि जिस तरीके से अमेरिका और जिस तरीके से कुछ ज्यूइश पावर जो है वो जिस तरीके से जुल्म कर रहे हैं, आप देखो कि टेररिज्म के जो, जिसका बेसिकली पैगंबर साहब की जिंदगी में तुम देखो तो इस्लाम से कोई लेना देना ही नहीं है। क्योंकि जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहे कि मैदान जंग में भी किसी काफिर औरत या किसी काफिर बच्चा या किसी गैर मजहब का अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति भी है तो उसे कत्ल मत करो। जो इस्लाम मैदान जंग में किसी औरत, बूढ़े और औरत, बच्चे को कत्ल करने के लिए मना कर रहा हो, वो इस्लाम भला सुसाइड बॉम्बिंग में और टेररिज्म में बेकसूरों को और निर्दोषों को मारा जाए, उसको कैसे कभी इजाजत दे सकता है? तो ये तो कुरान और हदीस का पैगाम है ही नहीं। इसके लिए ताहिरुल कादरी साहब जो अभी आए थे, आप जानते ही होंगे, बहुत बड़े स्कॉलर है, उन्होंने एक बुक भी लिखी है, फतवा ऑन टेररिज्म एंड सुसाइड बॉम्बिंग, जो 600 पेजेस में है। जब वो अभी हिंदुस्तान लास्ट ईयर आए थे तो उनकी पहली विजिट गुजरात में होनी थी और मोदी जी ने पहले वर्बली उनकी जो स्पीचेस होनी थी वो कैंसिल कर दी थी, क्योंकि उनको जो वीजा था वो पाकिस्तान से वो थे और उनके जो वीजा मिला था उसी में वो सारे प्रोविजंस नहीं थे, तो उनको स्पीच देना अलाउ करना। आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखा और सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिखा कि भाई ही इज नॉट अलाउड, तो फिर आपने भी उसको कैंसिल कर दिया था। लेकिन जब मुझे ये पता चला कि एक ऐसी व्यक्ति के जो पूरी दुनिया में आज पीस के लिए काम कर रहे हैं, ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहे हैं, जिन्होंने इस्लाम पर 400 से ज्यादा किताबें लिखी है और हदीस में, फिकह में, तफसीर में बहुत रिसर्च किया है कुरान में, तो एक ऐसी व्यक्ति अगर यहाँ आके बिना स्पीच देकर चली जाए तो ये अच्छा मैसेज नहीं है। तो मैंने फिर खुद मोदी जी के पास मैं गया उनकी पूरी टीम को लेकर और मैंने कहा कि ये ऐसी व्यक्ति है कि जिसने पूरी दुनिया में 100 पार्लियामेंट में स्पीच दी है। ये बहुत बड़ी बात है कि कोई एक व्यक्ति 100 मुल्कों की पार्लियामेंट में स्पीच दे, तो ये एक बहुत बड़े स्कॉलर है और ये मानवता के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी जी ने अपने रिस्क पर उनको परमिशन दिया, मतलब अपने रिस्क पर उनको परमिशन दिया। फिर सबसे बड़ा प्रोग्राम पहला उनका गुजरात में हुआ, गुजरात में 2 प्रोग्राम हुए, उसके बाद हैदराबाद में एक बड़ा प्रोग्राम हुआ, करीब 5 लाख लोग उसमें इकट्ठा थे। उसके बाद अजमेर शरीफ में एक बड़ा प्रोग्राम हुआ जिसमें भी 5 लाख लोग हाजिर रहे और उसके बाद तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी उनको वीआईपी गेस्ट का दर्जा देना पड़ा। यहां तक कि महाराष्ट्र की हाईकोर्ट ने तो ये कहा कि एक ऐसे अहम इंसान जो शांति के दूत है वो भारत में आते हैं, भला लोग कैसे कैसे लोग आके बकवास करके चले जाते हैं और एक शांति के दूत को बोलने से रोका जाता है। तो महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने तो ये कहा कि जो इसके खिलाफ जाता है उसको अरेस्ट कर लो, उसके खिलाफ एक्शन लो, यानी ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं ये मानता हूं कि ये बहुत जरूरत है इंटरनेशनल अफेयर्स को भी आप देखो कि हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी को एक साथ में भारत में जोड़ना, ये एक वक्त की जरूरत है। पश्चिमी मुल्क या हमारे जो पड़ोसी देश है, चाइना है, अमेरिका है, वो लोग हमेशा ये चाहते रहे हैं कि भाई भारत में आतंकवाद हो, भारत में दंगा फसाद हो, ताकि कम्युनिटीज के बीच में आपस में क्लैश हो और बर्बाद हो। क्योंकि मैंने ये देखा कि कभी ना अमेरिका में राइट होते हैं न कभी ब्रिटेन में राइट होते हैं। अगर कम्युनल रेसिस के कोई ऐसे इंसिडेंट भी होते हैं तो वहां की गवर्नमेंट स्ट्रिक्टली कदम उठाती है। क्योंकि एक बिल्कुल सीधी बात है, आप सब इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटीज हो, आप अच्छी बखूबी जानते हैं कि जिस मुल्क में अमन न हो वो मुल्क कभी प्रोग्रेस नहीं कर सकता, वहां विकास नहीं हो सकता। विकास के लिए, प्रोग्रेस के लिए अमन का, शांति का होना बहुत जरूरी है।
और वो चाहते हैं कि यहां अमन न रहे ताकि इंडिया को एक महासत्ता बनने से रोका सके, उसको एक सुपर पावर बनने से रोका जा सके। ऐसे हालत के अंदर जब मैंने देखा तो कि इराक में हालत देखो कि इराक में अंदर मैंने प्रेस टीवी ईरान पे खुद ने मैंने उसका एक सर्वे देखा था कि 35% बच्चे यतीम हो गए, अनाथ हो गए, और 30% जो वहाँ लेडीज है वो विडो हो गई। और ये था पूरा अमेरिका का पूरा जो एक्शन था वो इसलिए था कि लादेन जिसको खुद ने पैदा किया था, अफगानिस्तान में खुद नहीं पैदा किया, अफगानिस्तान में फिर उन्होंने अटैक किया, उसके साथ साथ हजारों लाखों निर्दोष मारे गए। उसके बाद कायदा का लिंक जो है वो सद्दाम के साथ था, ऐसा कहकर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इराक में है, ऐसा गलत इंफॉर्मेशन लाकर खड़ी कर इराक में हमला किया गया। वहां बहुत बड़ा बेकसूर लोग मारे गए, वहां भी आज भी मर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक्ट ऑफ टेररिज्म है। उसके बाद तुम लीबिया में देखो क्या हुआ। अभी फिलहाल ईरान और सीरिया में, सीरिया बाल बाल बच गया कि जब चाइना और रशिया ने इंटरफेयर किया और वो उन्होंने अपनी शिप्स वॉरशिप्स को भेजा, तब जाके अमेरिका पीछे हटा, वरना सीरिया में अनकरीब के वो हमला करने वाले थे। कहने की बात यह है कि मुसलमानों को जो वाकई जिनसे खतरा है उनसे हटाकर एक ऐसी कम्युनिटी, एक ऐसा हिंदू समाज कि जो हमेशा प्यार मोहब्बत और अमन को चाहने वाला है समाज है, और उससे हमारे नबी को, इस्लाम को कोई उससे मतलब कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उससे उलझाकर जानबूझकर बाहरी मुल्क की ताकत ऐसी है कि जो यहाँ डिस्टर्ब करना चाहती है, दोनों को बर्बाद करना चाहती है, साथ में हमारे मुल्क को, हिंदुस्तान को भी बर्बाद करना चाहते हैं। ऐसे मुल्क में एक अमन के लिए, एक शांति के लिए और विकास के लिए एक ऐसी डायरेक्शन की जरूरत थी कि जो ईमानदारी के साथ नेशंस के लिए और साथ में पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करे। तो मैंने फिर उस टाइम पे ये सोचा कि वो कौन सा रास्ता हो सकता है, वो कौन सा प्लेटफॉर्म हो सकता है। गुजरात में 2002 का राइट्स हुआ और आप जानते हैं कि वो बहुत ही कमनसीब वाकया पेश हुआ। राइट कोई भी हो, किसी भी वक्त में हो, वो कभी भी मतलब उसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते, उसको हम कंडेम ही करना चाहिए। लेकिन हमको साथ में ये भी देखना है कि इंडिपेंडेंस से लेकर आज तक क्या हुआ, आजादी से लेकर आज तक हिंदुस्तान की तारीख में 11,000 राइट्स हुए, उसमें लाखों हिंदू और मुसलमान मारे गए। और जहां तक हकीकत यह है कि ज्यादातर सब कांग्रेस रूलिंग वक्त में हुए हैं। हमारे गुजरात की बात करो, गुजरात में से पहले क्या था। गुजरात में 2002 के पहले एक बड़ा राइट हुआ 1965 में, जब चीफ मिनिस्टर थे हितेंद्र देसाई कांग्रेस के। वो इतना बड़ा दंगा था, इतने लोग मारे गए थे कि इंदिरा गांधी जी खुद अहमदाबाद आए थे गुजरात में। एक मस्जिद थी जो पुलिस स्टेशन के बिल्कुल बाजू में थी, जिसको शहीद कर दिया गया था। इंदिरा गांधी जी वहां आए थे, फिर भी ना उसमें कोई एफआईआर हुआ था, ना कोई चार्जशीट हुआ, न किसी को सजा हुई, न किसी विक्टिम को कोई सहायता मिली। महीनों तक दंगे चलते रहे। उसके बाद एक बड़ा दंगा हुआ 1985 में, जब माधव सिंह सोलंकी कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे। हजारों लोग मारे गए, 4-5 महीने तक दंगे चलते रहे। उसके बाद 87 में एक बड़ा दंगा हुआ, जब कांग्रेस के अमर सिंह चौधरी चीफ मिनिस्टर थे, उसमें भी कई लोग मारे गए। उसके बाद 90 और 92 का राइट्स तो आपको पता होगा, उसमें भी कांग्रेस के चीमन भाई पटेल चीफ मिनिस्टर थे। 92 का राइट, मैं खुद सूरत सिटी में रहता हूं, उसमें सबसे ज्यादा लोग हमारे शहर में मारे गए थे। और अफसोस की बात तो यह है, साथ में ताज्जुब की बात भी यह है कि कांग्रेस के होम मिनिस्टर सीडी पटेल हमारे शहर में मौजूद थे, क्योंकि वो हमारी ही करीब रहने वाले में से हैं। वो खुद वहां मौजूद थी और उनकी मौजूदगी में इतने बड़े राइट हुआ, दंगे हुए, कोई एक्शन नहीं लिया गया, न कोई पुलिस अथॉरिटी पे एक्शन लिए गए, न कोई लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए काम किया गया, न विक्टिम्स को कोई सहायता मिली, न कसूरवारों को सजा मिली। तो मैं ये कहता हूं कि क्या कांग्रेस के लिए कोई वही आई है, क्या कांग्रेस के लिए कोई इल्हाम आया है खुदा की तरफ से कि कांग्रेस के वक्त में या कांग्रेस के राज में जो भी कम्युनल राइट हो, जो भी हिंदू मुसलमान मारे गए जाएं, तो कांग्रेस को कोई हिसाब देना नहीं है?
जवाब देना नहीं है। आप जानते होंगे कि अभी सलमान खान के पिता सलीम खान ने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया था कि आपको पता है कि मेरठ और मलियाना दंगे हुए थे, उस वक्त चीफ मिनिस्टर कौन था? आपको पता है जमशेदपुर में राइट हुए, भागलपुर में राइट हुए, उस वक्त चीफ मिनिस्टर कौन था? 92 में महाराष्ट्र में कम्युनल राइट हुए खुद कांग्रेस ने श्री कृष्ण कमीशन का रिपोर्ट बनाया, समिति बनाई, और जब दंगाइयों को सजा देने के लिए जब वो रिपोर्ट आया तो उसको डस्टबिन में डाल दिया। अफसोस कि हमको कांग्रेस के रूलिंग में थाउजेंड्स ऑफ राइट्स हुए हैं, लेकिन हमको किसी एक चीफ मिनिस्टर का नाम भी पता नहीं है। और अगर 2002 का एक नाम ले लो तो फौरन मोदी का नाम साथ में आ जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि हम आह भी करें तो हो जाते हैं बदनाम, और तुम कत्ल भी करो तो चर्चा नहीं होता। इंसाफ जो होता है वो दोनों की तरफ बराबर होना चाहिए। नो प्रॉब्लम, वी आर रेडी टू गिव आंसर अबाउट 2002 राइट्स, बट पहले मुझे ये जवाब दो कि 11,000 राइट्स जो तुम्हारे रूलिंग में हुए हैं, और वो मुस्लिम कम्युनिटी के जो इंडिपेंडेंस से लेकर आज तक तुमको वोट्स देते आए, और मुस्लिम्स कम्युनिटी ने कांग्रेस के लिए, सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज के लिए जो कुर्बानियां दी है, जो सैक्रिफाइस किया है, वो आज तक किसी ने नहीं किया। बदले में मुस्लिम कम्युनिटी को कांग्रेस ने क्या दिया? उनकी सेफ्टी के लिए तो काम नहीं किया, क्या उनके डेवलपमेंट के लिए भी काम किया? ये तो बड़ी ताज्जुब वाली बात हो गई कि जब सच्चर कमेटी का रिपोर्ट आया और जस्टिस राजेंद्र सच्चर जो 7 सभ्यों की बनी हुई समिति थी, उसने 2006 नवंबर में वडाप्रधान मनमोहन सिंह जी को जब वो रिपोर्ट दिया, और वो रिपोर्ट जो खुद यूपीए गवर्नमेंट का, कांग्रेस रूलिंग गवर्नमेंट का बनाया हुआ रिपोर्ट था, वो रिपोर्ट में जब जानकारी आई तो पता चला कि हिंदुस्तान के मुसलमानों में सिर्फ 2% मुस्लिम्स के पास गवर्नमेंट जॉब्स है। 40% मुस्लिम जो है वो स्लम एरिया में रहते हैं, झोपड़पट्टियों में रहते हैं, और जो प्रिजनर्स है उनमें से 40% मुस्लिम्स है। और उससे आगे चलो, सबसे बड़ी दिल दहलाने वाली बात तो यह है कि कांग्रेस रूलिंग स्टेट्स में जेलों में, प्रिजन्स में मुस्लिमों की मेजॉरिटी है। तो ये तुमने कैसा शासन किया? वो मजहब के जिस मजहब में इबादत के 10 हिस्से हैं, हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इबादत के 10 हिस्से हैं, उसमें से 9 हिस्से हक हलाल की रोजी के हैं। हक हलाल की रोजी के 9 हिस्से हैं और एक हिस्से में बाकी का सब कुछ आ जाता है। हक हलाल और ईमानदारी को इतना सब इंपॉर्टेंस जिस मजहब में दिया गया हो, उस मजहब के लोग मेजॉरिटी प्रिजन्स में जाने के लिए मजबूर हो जाए, तो ऐसा तुमने कैसा शासन किया? ऐसा कैसा रूलिंग किया? अगर तुमने उनके एजुकेशन के लिए काम किया होता, तुमने अगर उनके डेवलपमेंट के लिए काम किया होता, तुमने उनके विकास के लिए काम किया होता, तुमने हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए काम किया होता, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम किया होता, तो उनको प्रिजन्स में ना जाना पड़ता, उनको कैदियों की टोपियां नहीं पहननी पड़ती। लेकिन तुमने ये जो रोलिंग किया, ये बर्बाद करने का काम किया। आज पोजीशन ये है कि इंडिपेंडेंस से लेकर आज तक ये मुस्लिम समाज का जो बहुमत है, वो कांग्रेस पार्टी के रहने के बावजूद इस मुल्क पर ज्यादातर वक्त 50 साल से ज्यादा शासन कांग्रेस से करने के बावजूद आज मुस्लिम समाज की पोजीशन हिंदुस्तान में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से भी ज्यादा खराब है, दलित समाज से भी ज्यादा खराब है। तो इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? वही है कि जिसने शासन किया है। बीजेपी से तो हम हिसाब इसलिए नहीं मांगते क्योंकि बीजेपी को हमने वोट दिया ही नहीं था। इससे पहले बीजेपी के साथ हम रहे ही नहीं थे। हमने तो जो विश्वास किया था, भरोसा किया था, हमने जो साथ दिया था वो इनको दिया था। इन्होंने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया, वो भी मैं आपको जवाब दूंगा। अब ये नहीं कि मैं पीछे हट रहा हूं, लेकिन मैं उसका ईमानदारी से जवाब दूंगा। मोदी जी जिस वक्त 2002 में चीफ मिनिस्टर बन के आए, उसको भी वक्त को भी देखने की जरूरत है। वो ईमानदारी से कहते हैं कि इससे पहले मैं म्युनिसिपल काउंसिलर भी नहीं रहा, मेरे पास एक्सपीरियंस था ही नहीं कोई ऑफिशियल वर्क का या गवर्नमेंट वर्क का। मैं किसी एक छोटी सी पोस्ट पे भी इससे पहले नहीं रहा हूं। मैंने संगठन में काम किया है, गवर्नमेंट में कभी नहीं काम किया। और जिस वक्त मोदी जी आए थे, कौन थे होम मिनिस्टर? गोवर्धन झड़फिया। आप देखते हैं वो आज ऑपोजिट लॉबी में है, जीपीपी पार्टी में है। और जो मिनिस्ट्री में और जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उसमें कुछ लोग ऐसे थे कि जो नहीं चाहते थे कि मोदी जी वहां चीफ मिनिस्टर बने रहें, क्योंकि उनको तो लाके बिठा दिया था। कच्छ में जो अर्थक्वेक आया था और उसके बाद जो धांधलियां हुई और जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो प्रॉब्लम आए, उसके लिए उनको लाके डाल दिया। अब ये बताओ कि तुम्हें कहीं का चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए, लेकिन वहां के जो की फैक्टर पर जो बैठे हुए लोग अगर आपको फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप क्या करोगे?
आपकी फौज जो है वही आपके साथ नहीं है, तो वो सरदार क्या करेगा? उन्होंने ईमानदारी से उस वक्त काम किया। उन्होंने महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को उसी दिन रिकॉर्ड कह रहा, ये सीट की सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्ट में आया है, उन्होंने महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर को लिखा कि यहां पुलिस फोर्स भेजो। उन्होंने राजस्थान को भेजा, अतराफ के जितने भी स्टेट्स थे उनको भेजा। मिलिट्री आई तो उसी दिन उन्होंने डिप्लॉय कर दिया। 4 दिन में राइट कंट्रोल हो गए, सिर्फ 4 दिन में। इससे पहले गुजरात की हिस्ट्री थी कि 1965 हो, 85 हो, 87 हो, 90 हो, 92 के राइट्स हो, 3 महीने 4 महीने तक दंगे नहीं रुकते थे। और गुजरात में तो कोई साल ही ऐसा नहीं होता था कि दंगे से खाली गया हो। और आज भी अभी मैंने देखा कि 400 से ज्यादा दंगे तो अभी यूपी के इस नेक्स्ट सेशन में हो गए। आज गुजरात में देखो 11 साल से कर्फ्यूलेस है, नॉट अ सिंगल राइट एट एनी प्लेस। जब से मोदी जी का फुल एडमिनिस्ट्रेशन है गुजरात में, जब उनका फुल कंट्रोल आ गया और उन्होंने मिनिस्ट्री में, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में, उन्होंने सरकार में जो अच्छे और ईमानदार लोगों को पूरा वहां पे काबिज कर दिया, तो आज पोजीशन है ये है गुजरात में कि एक भी दंगा नहीं है। आज गुजरात में हम फख्र के साथ कह सकते हैं कि किसी भी हिंदू रीजियन में रात को 2 बजे कोई मुस्लिम लड़की अकेले घूम सकती है और किसी भी मुस्लिम रीजियन में हिंदू लड़की जा सकती है। आज हिंदू मुस्लिम एकता और सद्भावना का इतना अच्छा माहौल गुजरात में है कि हिंदू और मुस्लिम बिजनेस पार्टनरशिप कर रहे हैं। आज तुम देखो मुस्लिमों का जो वहां डेवलपमेंट हुआ है, ये कहते हैं कि भाई वो ऐसे के वैसे नहीं होता, बोले वो तो गुजरात के मुस्लिम्स के एफर्ट है। बोले अभी एक नेता ने कांग्रेस के ये कहा कि भाई वो तो खुदा के फजल से हुआ है। बेशक खुदा की ईश्वर की मर्जी के बिना तो कुछ होता ही नहीं, लेकिन क्या जो शासन करता है उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? आज एक जो छोटा सा पौधा है उसको अगर हम दरख्त बनाना हो तो उसके लिए अच्छा पानी देना पड़ता है, उसको खाद देना पड़ता है, सूरज की रोशनी चाहिए, हवा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, सब कुछ चाहिए उसको। उसके बिना तो वो नहीं होता। ये एक वसीले वास्ते जरिए अल्लाह ने बनाए। तो तुम अगर शासक हो तो तुम्हारा फर्ज बनता है, तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम ईमानदारी से काम करो। आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि सच्चर कमेटी के रिपोर्ट ने तो यह कहा था कि हिंदुस्तान के मुसलमान के पास एवरेज 2% गवर्नमेंट जॉब है। आज अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के डेटा के मुताबिक गुजरात में 9% मुस्लिम पॉपुलेशन है। गुजरात में पॉपुलेशन 9% है और 9% के पास गवर्नमेंट जॉब है। सबसे हाईएस्ट परसेंटेज वाइज गवर्नमेंट जॉब अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट ने दिए हैं तो वो मोदी गवर्नमेंट ने दिए मुस्लिम्स को रोजगारी में। और आप सब सारे एजुकेशन फील्ड में से आते हो तो आप समझ सकते हो कि किसी भी कम्युनिटी का, किसी भी समाज को अगर विकास करना है तो उसके लिए रोजगारी जरूरी है। और गवर्नमेंट में जब तक तुम उनको जॉब्स नहीं दोगे तब तक उनका विकास नहीं होगा। तो मैं कांग्रेस से ये सवाल करता हूं कि तुम एक तो स्टेट हमें बताओ तुम्हारा कि जहां तुमने 9% गवर्नमेंट जॉब दिए हो, 10% दिए हो, या पॉपुलेशन के वाइज में दिया हो। नहीं। अच्छा, जस्टिस राजेंद्र सच्चन ने यह भी सिफारिश में लिखा था कि कम्युनल राइट्स को कंट्रोल करने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट में मुसलमानों की भर्ती करनी चाहिए। अगर मुसलमानों की भी तादाद पुलिस डिपार्टमेंट में होगी तो उससे भी कम्युनल राइट्स को कंट्रोल करने में एक बहुत आसानी होगी, बैलेंस होगा। अच्छा, ताज्जुब की बात यह है कि इस बात पर कांग्रेस या सो कॉल्ड जितनी भी सेक्युलर पार्टीज हैं, किसी ने इस पर अमल नहीं किया। आप इंटरनेट पे जाओ, सर्च करो टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे। टाइम्स ऑफ इंडिया ने 2012 में अभी गृह मंत्रालय में आरटीआई किया। आरटीआई तो आप जानते हैं, आरटीआई में कोई गलत इंफॉर्मेशन नहीं आती, सेंट्रल गवर्नमेंट में, होम मिनिस्ट्री में, कि कौन से स्टेट में पुलिस डिपार्टमेंट में मुस्लिम्स कितने परसेंटेज है, इसका डेटा चाहिए हमें। आपको ताज्जुब होगा कि कुछ कांग्रेस के स्टेट्स तो ऐसे हैं कि जिन्होंने इंफॉर्मेशन देने से ही इनकार कर दिया, और जहां है तो कहीं 3% है, 3% है, कहीं 4% है। गुजरात ही एक ऐसा स्टेट है कि जहां पॉपुलेशन 9% है और पुलिस डिपार्टमेंट में मुस्लिम्स 10.6% है। यानी उसके परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन से भी ज्यादा परसेंटेज ऑफ इन पुलिस डिपार्टमेंट ज्यादा है। 47,000 पुलिसकर्मी गुजरात में है, उसमें 5,000 प्लस मुस्लिम्स। और फिर भी ये कहते हैं कि गुजरात की मोदी गवर्नमेंट ये एंटी मुस्लिम है।
भाई एंटी मुस्लिम किस फैक्टर में, ये तो हमें बताओ। रोजगारी में गुजरात मुस्लिम्स को हाईएस्ट रोजगारी दे रहा है, पुलिस डिपार्टमेंट में हाईएस्ट मुस्लिम्स गुजरात में है, एजुकेशन में 73.5% लिटरेसी है मुस्लिम्स में, गुजरात के हिंदुओं में लिटरेसी 68% है, जब से 5.5% ज्यादा लिटरेसी यानी 73.5% लिटरेसी मुस्लिम्स के अंदर गुजरात में है। स्कॉलरशिप में, हाँ बिल्कुल, वो ये कहते हैं कि हम भेदभाव नहीं करेंगे हिंदू और मुस्लिम में, हम जस्टिस फॉर ऑल अपीजमेंट फॉर नन, सबका साथ और सबका विकास। तुम सिर्फ कांग्रेस का क्या रहा अभी तक का कि मुस्लिम्स को खुश करने के लिए, लुभाने के लिए कोई योजना बना दो बस, और योजना ऐसी हो कि जो भड़काने वाली हो और ऐसा लगे कि वो हमारे लिए कुछ बहुत हो रहा है। ग्राउंड पे जाके देखो तो कुछ भी नहीं होगा। वजाहत हुसैन जो नेशनल माइनॉरिटी के हेड है, जो यूपीए गवर्नमेंट के हैं, वो अभी हमारे अहमदाबाद में आए थे। उन्होंने ये स्टेज पे आके खुद ने कहा, वजाहत हुसैन ने, कि स्ट्रक्चर समिति की 40 सिफारिशों में से 39 पे ये 7 साल हो गए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अमल की शुरुआत भी नहीं की। अब आप में से हर एक शख्स जो है, मैं मानता हूं कि कम से कम 1000 आदमी को लीड करता है। मैं आपको यह सवाल करता हूं कि 40 सिफारिशों में से 7 साल के बाद भी खुद नेशनल माइनॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट का हेड ये कहता हो, हम नहीं कहते, बीजेपी वाले नहीं कहते, ये कहते हो कि 39 पे अमल की शुरुआत भी नहीं हुई। तो आप इस पे से सोचो कि कांग्रेस का नजरिया कैसा है। सिर्फ योजनाएं बनाना, सिर्फ हथेली में चांद दिखाना, कुछ करना कुछ भी नहीं। अच्छा, अभी लास्ट मंथ जो डेटा आया, जो 12वीं योजना थी जन कल्याण की, माइनॉरिटी वेलफेयर की, वड़ा प्रधान की जो 12वीं योजना थी, उसमें से 41% पैसे, जिसमें हर साल 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा इस्तेमाल करने होते हैं, उसके 4 साल का डेटा ये कहता है कि 41% जो उसका जो पूरा वो योजना का जो पूरा पैसा था वो लैप्स हो गया। 41%, देखो कितनी बड़ी बात है। यानी तुम योजना बनाते हो, योजना के लिए पैसे अलर्ट भी करते हो, उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे, और तुम्हारे सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी लीडर बैठे हुए हो वो क्या कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। कहने की बात यह है कि ईमानदारी से जो काम करना चाहिए ग्राउंड लेवल पर, ये नहीं कर रहे हैं। सच्चर कमेटी ने तो दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया कि आज तक इन्होंने क्या किया था, वक्फ प्रॉपर्टीज के बारे में जो धांधलियां की, सारी चीजें जो आज तक इन्होंने की। और एक तरफ ये देखो, रोजगारी में देखो, गवर्नमेंट में देखो, पीस में देखो, सद्भावना में देखो कि कौन सी सरकार अच्छा काम कर रही है। मोदी जी 2002 में थे, 4 दिन में कंट्रोल कर लिया। और आपको मुझे तो जान के अभी यहां पता चला कि यहां के एक बड़े स्कॉलर, मुस्लिम स्कॉलर थे, उनको एक दीनी वक्त की मकसद से, उनको इस्लामी मकसद से उनको काम करना था, तो फौरन गुजरात में उन्होंने 5 एकड़ लैंड दे दिया उनको कि लो और ये वेलफेयर के लिए काम करो। कहने की बात यह है कि हमें कुछ नेताओं का भला हो जाए, कुछ 2-4 को मिनिस्टर बना दिया, 2-4 को सांसद बना दिया, उससे हमारी मुस्लिम कम्युनिटी का भला नहीं होने वाला, उससे गरीबों का भला नहीं होने वाला, हमारे बच्चों का फ्यूचर उससे नहीं बनेगा। क्या हम ये चाहते हैं कि कुछ मेरे जैसे 2-4 लोगों का भला हो गया, हम बड़े हो गए, हम रेड लाइट में घूमते हो गए, हमको बंगला मिल गया, बस खत्म हो गई बात? ऐसा तो आजादी से हो रहा है। आज इंडिपेंडेंस से आज तक मुसलमानों के साथ यही हुआ है। चंद नेताओं को खरीद लिया, उनका भला कर दिया, खत्म। लेकिन मेरे समाज के गरीबों का भला कब होगा, मेरे बच्चों के फ्यूचर का कब होगा? जब तक तुम ईमानदारी से काम नहीं करोगे। हमें नहीं चाहिए मिनिस्ट्री ऐसी, हमें नहीं चाहिए सांसद, हमें नहीं चाहिए एमएलएज, हमें यह चाहिए कि ईमानदारी के साथ हमारे गरीबों का काम करे, यतीमों का काम करे, हमारे एजुकेशन के लिए काम करो, हमारे डेवलपमेंट के लिए काम करो, उनको रोजगार ही दो। समाज के गरीबों का भला होगा, लाखों का, करोड़ों का भला होगा, तब समाज की तरक्की होगी। 2-4 नेताओं की तरक्की से समाज की तरक्की नहीं होने वाली। और हमें रिसर्च करना पड़ेगा ईमानदारी से। आज तक सच्चर कमेटी को पढ़ना पड़ेगा, जो उनका खुद का रिपोर्ट है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के डेटा को पढ़ना पड़ेगा। क्या हमने कभी सोचा कि जो योजनाएं कांग्रेस ने बनाई, यूपीए गवर्नमेंट ने बनाई, क्या उसको इंप्लीमेंटेशन किया उन्होंने?
नहीं किया। मुझे अभी एक अनवारुल हक साहब थे दिल्ली के, जो सॉरी अनवारुल हक साहब दिल्ली के हैं कि जो मीडिया से बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, मतलब वो कोई पॉलिटिकल नहीं। उन्होंने मुझे कहा कि तुम कोई भी योजना देख लो, मौलाना आजाद फाउंडेशन के लिए भी जो उन्होंने अलर्ट किए हैं उसको भी इस्तेमाल नहीं किया। कहने की बात यह है कि आज भी रवैया सच्चर कमेटी के रिपोर्ट के बाद भी कांग्रेस का ग्राउंड लेवल पे काम करने का जो रवैया है वो चेंज नहीं हुआ है। 2G स्कैम देखो, कोलसा कौभांड देखो, आदर्श कौभांड देखो, 2 लाख करोड़ एक स्कैम तुम्हारा, 2 लाख करोड़ रुपए का। 2 लाख करोड़ किसे कहते हैं? मुझे तो 2 लाख करोड़ का कोई इमेजिनेशन भी नहीं था। तो मैंने एक फाइनेंस डिपार्टमेंट को व्यक्ति को पूछा कि 2 लाख करोड़ कब होते हैं। उसने कहा कि 200 ट्रकें, जो फुल ट्रक होती है, 200 ट्रकें भर के 1,000 रुपए की नोट को फुल लोड करो, 1000 रुपीज की एक नोट होती है, ऐसी 200 ट्रकें फुल लोड करो तो 2 लाख करोड़ होते हैं। मैंने बोला हाँ, इतने सारी ट्रकें खा गए फिर भी डकार नहीं ली। उसमें बाकी थे तो वो कोयला स्कैम में खा गए। कहने की बात यह है कि जो भी मिनिस्ट्री में बैठा है वो लूटने के लिए बैठा है। अभी ये गे रिलेशंस के बारे में जो अभी कांग्रेस के लीडर्स के जो आए, देखो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये अपराध है, सजाती है संबंध। हम खास तौर पे इस्लामिक संस्कृति, हिंदू संस्कृति या क्रिश्चियन संस्कृति, जो भी मजहबी है, धार्मिक संस्कृतियां इसके खिलाफ है, क्योंकि ये चीजें तो जानवरों में भी नहीं होती, जानवरों में भी नहीं होती ये चीजें। तो उसको कांग्रेस के लीडर्स सोनिया जी, राहुल जी कह रहे हैं कि नहीं, इसके लिए नया रूल बनाना चाहिए। अरे हम तो जानते हैं कि लूत अलैहिस्सलाम की पूरी कौम उसके लिए तबाह हो गई, बर्बाद हो गई है। जो अच्छा जानवरों में नहीं है, तो कांग्रेस के एक लीडर ने कहा कि बिल्कुल किसी जानवर में नहीं है, लेकिन एक ऑक्टोपस नाम की प्रजाति बोले उसके अंदर ये चीज देखने में आती है। ये अभी ऑक्टोपस से नसीहत लेंगे बोलो। कहने की बात यह है कि ये संस्कृति को कोलैप्स करने रहे हैं, ये मुल्क को कोलैप्स कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, कम्युनिटीज को बर्बाद कर रहे हैं। कभी रिफॉर्म्स के लिए काम नहीं किया। मैं आपको बताता हूं, इससे पहले राइट होते थे हमारे एरिया में, हम कांग्रेस के नेताओं को बुलाते थे। मैं ये आज डंके की चोट पर उनके नाम के साथ आपको कह सकता हूं कि मैंने ये कांग्रेस मुस्लिम लीडर को फोन किया था, मैंने ये हिंदू लीडर को फोन किया था। उनका जवाब ये होता था, हम आएंगे तो प्रॉब्लम और बढ़ जाएंगे। तो मैंने बोला आप एसी में आराम कीजिए, यहां पब्लिक परेशान होगी। तुम हमारे विकास के लिए काम न करो, हमारी रोजगारी के लिए काम न करो, और जब हम पे जख्म लगे तो तुम मलहम लगाने भी ना आओ, और फिर हम तुम्हारे पीछे कुर्बान होते रहे। ये बिल्कुल बेवफाई वाली बात है। और मैं कहता हूं कि ऐसे बेवफा दोस्तों से, दोस्त तो नहीं कह सकते हो, दोस्त भी नहीं कह सकते। और भड़काया जा रहा है मोदी जी के बारे में, मोदी जी ये कर डालेंगे, मोदी जी वो कर डालेंगे। मोदी जी को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं, मोदी जी के परिवार को जानता हूं। आज भी मोदी जी का परिवार वहां जाके ये नहीं कह सकता कि मैं किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कि मैं मोदी जी का भाई हूं या मैं मोदी जी की बहन हूं। वो ईमानदारी से वहां काम हो रहा है। 40 साल पहले जिस पुराने मकान में रहते था उनका परिवार, उनकी मां, उनके अपने बच्चे वगैरह तो कोई है नहीं कि जिसके लिए कुछ छोड़ के जाना है, दामाद वगैरह के लिए, जो आजकल होता है, यही होता है। चीफ मिनिस्टर ज्यादा तो उनके परिवार वालों का टॉर्चिंग ज्यादा होता। बिल्कुल नहीं। उसी पुराने मकान में आज रह रहे हैं वो, उनके भाई, उनके बहन। आदमी करप्शन क्यों करेगा? परिवार के लिए करेगा। अब उनकी अपनी फैमिली नहीं है, अब जो है भाई है, मां है, बहन है, तुम उनकी हालत जाके तुम देख सकते हो, खुला है कि वो किस मकान में रहते हैं, किस हालत में रहते हैं। एक रूम किचन के घर में रहते हैं वो आज भी। चीफ मिनिस्टर, जो समृद्ध एक स्टेट गुजरात जैसा का चीफ मिनिस्टर, आज भी इतनी ईमानदारी के साथ उसका परिवार रह रहा हो। और हमें जरूरत है एक ऐसे ईमानदार की। हमारा गुजरात का एडमिनिस्ट्रेशन, जब तक प्रजा का विकास तब तक नहीं होगा जबकि जो वहीवट तंत्र में जो धांधलियां है, जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो करप्शन है,
और जो कामचोर लोग बैठे हुए हैं उनको ठीक न किया जाए। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अगर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो जिस तरीके से गुजरात के एडमिनिस्ट्रेशन को, वहीवट तंत्र को उन्होंने ठीक कर दिया, पूरा हिंदुस्तान का जो एडमिनिस्ट्रेशन है और जो वहीवट तंत्र है वो ठीक हो जाएगा। और हमें ऐसे ही ईमानदार व्यक्ति की जरूरत है कि जो हर कम्युनिटी के लिए, हमें ये नहीं चाहिए कि भाई हमारे कुछ मजहबी तौर पे काम कर लो। विविधता में एकता हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। मुसलमान मुसलमान रहे, हिंदू हिंदू रहे, ला इकराह फिद दीन। कुरान ने भी कह दिया किसी भी साथ मजहब में किसी के साथ जबरदस्ती मत करो। पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है, ये मजहबी कामों के लिए नहीं है, ये सोशल वेलफेयर के लिए, जन कल्याण का काम होना चाहिए, गरीबों के विकास का काम होना चाहिए। बस हमें वो चाहिए। ये एक दो काम ऐसे कर लेते हैं कि मजहबी तौर पे मुसलमानों को ऐसा लगे कि ये तो हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, देखो इन्होंने तो ये कर लिया, देखो इन्होंने तो वो कर लिया, वहां जाके आए, वो रिलीजियस प्लेस की मुलाकात ली, फलां जगह पे चले गए। इससे क्या होगा? इससे कौम का भला हो जाएगा? नहीं होगा। कहने की बात दोस्तों ये है कि कांग्रेस का पूरा ढांचा इस तरीके का है कि ये बिल्कुल एक अच्छा ईमानदार शासन देने के काबिल नहीं है। दोस्तों, हमें एक ऐसी चीज की जरूरत है कि जो ईमानदारी के साथ काम करे। आज तुम गुजरात में आके खुद देखो, मैं तो साथ में आपको दावत भी देने रहा हूं कि मैं कह रहा हूं, मैंने अभी रहीम जी से कहा मैंने कि आप पूरी टीम एक डेलीगेशन लेके आओ जिसमें सिर्फ मजहबी लोग ना हो, सिर्फ पॉलिटिकल लोग ना हो, उसमें कुछ मजहबी लोग भी हो, जिसका किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई वास्ता ना हो, जो ईमानदार हो। ऐसे लोग आए और गुजरात की मुलाकात लो। आप गुजरात में देखो, आज गुजरात के अंदर इलेक्टेड मुस्लिम काउंसिलर की तादाद, जो बीजेपी के मैंडेट पे जीते हैं मुस्लिम्स, उनकी तादाद कांग्रेस से ज्यादा है। 240 मुस्लिम काउंसिलर्स गुजरात में बीजेपी के मैंडेट पे जीते हैं, जो कांग्रेस से भी ज्यादा है। और उनमें से 120 तो आज चेयरमैन है। अगर मोदी जी एंटी मुस्लिम होते, और ये अभी की बात नहीं है, ये आज तो नहीं, ये अभी पीएम वाला तो अभी शुरू हुआ, ये तो मैं आपको पहले की बात बता रहा हूं। और मैं आपको ले जाऊंगा उन बस्तियों में, उन मुस्लिम बस्तियों में कि जहां 50 साल में कांग्रेस ने न रास्ते बनाए थे, न सड़कें बनाई थी, न वहां कोई मेडिकल सुविधाएं थी, ना कोई एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स थे वहां। आज तुम खुद जाके देखो कि वहां के रास्ते कैसे बने हैं, वहां जल पानी की व्यवस्था कैसी है, वहां मेडिकल सेंटर कैसे बने खड़े हुए हैं। कहने की बात यह है कि हमारी कौम को यह जरूरत है, समाज को इन चीजों की जरूरत है। और हमें ऐसा शासक चाहिए कि जो ये सारी चीजें, सुविधाएं उपलब्ध कराए। सिर्फ नेताओं के, 2-4 नेताओं के भला कर देने वाले की जरूरत नहीं है हमें। तो दोस्तों, इसी बात को अपने यहां मैं पूरी तो नहीं कर रहा, लेकिन साथ में अगर आप लोगों के भी कुछ व्यूज हैं या आपके भी कुछ सजेशंस हैं कि हमें क्या करनी चाहिए, या आपको कुछ किसी बारे में या गुजरात के बारे में पूछना है, या और कुछ एक मोहब्बत और इखलास के एटमॉस्फेयर में, तो एक दूसरे के व्यूज को आप शेयर भी कर सकते हैं, ताकि आप अपने हम इस गुफ्तगू को और आगे बढ़ा सके और एक दूसरे के ख्यालात का इजहार भी कर सके। मैं अकेला बोलता रहूं और आप सुनते रहे, ये भी ठीक नहीं है। तो ಯಾರಿಗಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. Hi, my name is Ashit. For TV about 2002 riot victims, you know, they always paint a picture that okay, the riot victims are still in those bastis next to the garbage yard, and nothing has been done. So I still feel it's a misconception. Like anything else, Barka Dutt, Rajiv Sardar said, they just paid media, they just do what they do. But can you please enlighten us with what's really happening in the ground? Thank you. 2002 के जो विक्टिम्स थे उनको रिहैबिलिटेशन के लिए उनका अच्छा काम हुआ है कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह, एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है विक्टिम में कि जो उसको सहाय न मिली हो। हमने उस पर पूरी डॉक्यूमेंट्री भी तैयार की है, उसकी पूरी वीडियो फिल्म भी है। और अभी तो माहौल ऐसा है कि जो जहां था वो बिल्कुल उसका पुनर्वास भी हो चुका है, और इसमें किसी को एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिसको सहाय न मिली हो। तो ये जो सारी अगर कुछ बातें अगर फैला रहे हैं, तो मैंने आपको पहले से ही कहा कि कांग्रेस का तो ये नीति रीति ही रही है कि भाई मुस्लिम्स के वेलफेयर के लिए कुछ ना करोगे तो चलेगा, उनको सिर्फ मोदी से या बीजेपी से डरा दो,
अभी जैसे महमूद मदनी साहब ने भी कहा कि सिर्फ तुम किसी का भय बताकर कब तक राज करते रहोगे। मौलाना महमूद मदनी साहब ने बहुत अच्छा बताया कि सिर्फ किसी का भय बताकर तुम राज करोगे। खुदा से डराओ, डरना है तो खुदा का खौफ होना चाहिए हर एक को। तुम किसी और से डराकर फिर तुम उसकी बुनियाद पर हुकूमत करना चाहते हो, वो बिल्कुल खिलाफ है। आप मुजफ्फरनगर की बात कीजिए, आप वहां स्टेट में एसपी की गवर्नमेंट है, सेंट्रल में कांग्रेस की यूपीए की गवर्नमेंट है। आज 40 से ज्यादा बच्चे मारे गए, शहीद हो गए। अभी मैंने वहां मेरे चैनल की टीम को बोला है, वहां लंदन में इंशाल्लाह अनकरीब वो एक रिलीफ पैकेज लेके आ रहे हैं वहां, और विक्टिम्स को सहायता करने के लिए, और हमारी पूरी टीम वहां से गुजरात से अभी जाने वाली है। कहने की बात यह है कि वहां चलो तुमने पूरी कम्युनिटी का तो कुछ भी नहीं किया, तुम वहां भी नहीं हेल्प कर रहे हो। वो उन बच्चों का क्या कसूर जो सिर्फ ठंडी की वजह से 40 बच्चे भी मारे, सिर्फ ठंडी की वजह से। कहने की बात यह है कि जो वोट्स लेते हैं मुस्लिम्स के और जो वोटों की राजनीति करते हैं, बदले में वो क्या करते हैं। तो एक अच्छा सवाल था आपका, और बिल्कुल फ्री एटमॉस्फेयर में मैं बिल्कुल आपकी तरह ही हूं, एक आपका छोटा भाई हूं। तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं कोई भी सवाल, इसमें कोई सवाल नहीं। और आपका सजेशन भी हो, सवाल नहीं, मतलब एक सजेशन भी हो कि जिससे हम सबको, हमें भी आपसे, मुझे भी कुछ सीखने का मिले। मैं सिर्फ आपको कुछ बताने के लिए नहीं आया हूं, आपसे भी कुछ सीखने के लिए आया। जो इतना अच्छा डेवलपमेंट किया, इसके लिए इनका साथ का जो मिनिस्टर जो है उन्होंने साथ दिया, ईमानदारी से काम किया। तो मोदी जी अब सेंट्रल में जाएंगे, पीएम बनेंगे, तो उनसे पहले जो उधर का लीडर्स है उसमें कोई अभी मनमुटा है कि मोदी जी का बारे में। तो वो जो गुजरात में जो उनका मिनिस्टर्स को कंट्रोल करके ईमानदारी से काम किया, वैसा ही वो पीएम बनने के बाद में सेंट्रल में कर सकते। उनका एक देखो जो फैक्ट है वो मैं आपको कहता हूं कि पॉलिटिक्स में 100% अपनी चाहत के मुताबिक नहीं होता काम, ये बिल्कुल होता है। लेकिन उनका एक रोल रहा है कि वो कभी भी जो नेगेटिव चीजें हैं उसको एंटरटेन नहीं करते, और अगर वक्ती तौर पे अगर कुछ किया है तो उसको डेफिनेटली बाद में उस पे एक्शन भी वो लेंगे। लेकिन एक बात मैं ये भी कहता हूं कि जो ईमानदारी से बात कहने की, प्रजा को भी करप्शन के बारे में और प्रजा को भी जो स्कैम्स के बारे में अपना जनमत इकट्ठा करना पड़ेगा। यहां कर्नाटक में बीजेपी की गवर्नमेंट थी, ठीक है। अब मुझे एक भी ऐसी गवर्नमेंट स्टेट बता दो कांग्रेस रूलिंग में कि एक कोई ऐसा स्कैम हुआ हो और वो पार्टी ने अपनी पूरी गवर्नमेंट को खो दिया हो, एक संदेश देने के लिए कि भाई हम करप्शन के खिलाफ हैं। बदले में क्या हुआ, प्रजा का जो नेक्स्ट मैंडेट आया वो कैसा आया, यानी जब तक पब्लिक में जागृति नहीं आएगी, समझो मेरी बात, पब्लिक में जब तक जागृति अवेयरनेस नहीं आएगा और पब्लिक इसके खिलाफ इकट्ठा नहीं होगी, पब्लिक नेता बनाती है, पब्लिक पार्टी को सिलेक्ट करती है और गवर्नेंस में लाती है। तो कुछ जो चीजें हैं वो हमको अपने अंदर भी उसको सुधार लाना जरूरी होगा कि हम ऐसे लोगों को चुन के ले जाए, और अगर ऐसा कोई डिसीजन लेते हैं तो उसको हम उसके साथ खड़े रहे। उसके बदले कर्नाटक की प्रजा साथ नहीं खड़ी रही नेक्स्ट इलेक्शन में। हालांकि जो टॉपिक था, जो जिस इश्यू पे बीजेपी ने ये कुर्बानी दी थी वो बिल्कुल ईमानदारी वाला था, लेकिन खड़े नहीं रहे। अब पब्लिक अवेयरनेस नहीं आएगी तो फिर तुम सिर्फ नेताओं से अवेयरनेस कैसे उम्मीद कर सकते हो। ये बहुत गंभीर बात है, ये आपने जो टॉपिक लिया ये भी बहुत सीरियस बात है। कहने की बात यह है, हम मानते हैं कि 100% करप्शन फ्री तो कोई कंट्री नहीं है, और 100% पे जाना मुश्किल है। लेकिन राजीव गांधी जी ने यह कहा था कि मैं 1 रुपया भेजता हूं तो सिर्फ 15 पैसे तुम तक पहुंचते हैं। सही बात है। कांग्रेस का तो एडमिनिस्ट्रेशन ही ऐसा है कि रुपया भेजो और 15 पैसे वहां तक पहुंचे। कम से कम ऐसा तो एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए कि 1 रुपया में से
15 पैसे तुम खाओ तो 85 तो वहां जाना चाहिए। ये बिल्कुल फैक्ट कर रहा हूं इसलिए कि हम यहां बैठे हुए हैं। मानो कि 15 अंदर चला गया, ऊपर से आया तो नीचे तक चला गया, 100% क्लियरेंस करना अभी फिलहाल हमारा जो पूरा ढांचा बना है, मैं सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करके चला जाऊं वो भी नहीं है, सच्ची बात कहना जरूरी है, समझो। इसके लिए हमने मोदी जी ने वहां गरीब कल्याण मेले शुरू किए, एक नया नए व्यू के साथ शुरू किया कि गरीब कल्याण मेले में अब उन्होंने क्या किया कि पहले ये जो अधिकारी लोग हैं वो सहाय देते थे लोगों तक, अब उन्होंने ये किया कि गरीब कल्याण मेले में लोग जो जिनको सहाय देनी है उनको ही एक साथ में एक जगह पर इकट्ठा किया जाए और जो उसका चेक हो उसका बैंक अकाउंट खोला जाए और जो भी उसको देना है, जैसे कि किसी को कुछ पैसे देना है या कोई उसको कोई इमदाद करनी है तो वो सारी चीज उसको डायरेक्ट देते हैं, वो बीच में कोई नहीं रहेगा, जिसे कहते हैं कि वचेटिया कहते हैं गुजराती में, वचेटिया नाबूदी अभियान, कि जो मीडिएटर है उसको खत्म कर दो और गवर्नमेंट का डायरेक्ट बेनिफिट गरीब तक पहुंचे। ये बात तो यकीनी है। अरे मेरी बात सुनो, मैं तुमको क्या कह रहा हूं, वो उनके आने की और फिर कुछ करने की तो बात दूर है, अगर मोदी जी सेंट्रल में पीएम बन गए जिस दिन, तो उसी दिन 50% एडमिनिस्ट्रेशन की बीमारियां दूर हो जाएगी। ये हकीकत है, क्योंकि मैं अभी आपको एक किस्सा बताता हूं, थोड़ा अभी मुझे ऐसा लगता है कि सब सीरियस हो गए तो थोड़ी हंसी वाली बात भी हो। मेरे एक अच्छे मित्र है, महाराज है, रमन महाराज करके है, वो सूरत में ही रहते हैं और वो अक्सर काशी और हरिद्वार सब यात्रा पे जाते रहते हैं। तो अभी वो बिहार गए थे वहां गया के करीब, तो जब ट्रेन में बैठे तो कुछ चोर लोग थे अंदर डिब्बे में, उनको ऐसा लगा कि ये महाराज के पास गुजराती है और इसके पास कुछ पैसा लंगोट में ज्यादा है, तो बोला कि इसको अपने पकड़ लेते हैं। वो समझ गए, सुन लिया उन्होंने, तो जब ट्रेन स्लो हुई तो चालू ट्रेन में से वो कूद के वो किसी को हाथ करके किसी पुलिस के वहां पहुंच गए, पुलिस थाने में। वो लोग पीछा करते करते वहां भी पहुंचे और साथ में तो 50-100 लोग इकट्ठा हो गए। जब पुलिस भी उनके साथ मिली हुई थी और वो भी मिली हुई थी, जैसा अभी हमारा लास्ट 2 वीक्स पहले हुआ कि मैं सूरत में जहां मेरी सोसाइटी का एक बच्चे को बिहार के लोग किडनैप करके ले गए, 15 करोड़ रुपए लिए उन्होंने, उसमें ये नीतीश गवर्नमेंट का एक मिनिस्टर भी शामिल है। 15 करोड़ रुपए वो बच्चे को किडनैप करके लिए उसके साथ। अभी नीतीश कुमार ने भी उस पर इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर्स दिए और बिहार पुलिस ने ये कबूल किया कि हाँ उनके पास 15 करोड़ रुपए लिए, मेरी पड़ोस में रहता है। ये वहां का शासन है। अच्छा, उसको पूरे पुलिस थाने को, महाराज को घेर लिया, फिर उसको ऐसा लगा कि ये मुझे पुलिस भी इसके साथ मिल गई है और ये मेरा आज सौदा ही कर देंगे यहाँ। तो उसके पास एक तस्वीर थी मेरी और मोदी जी, वो उसको पुलिस वाले को बताई, बोले कि देखो ये मोदी जी के साथ मेरे डायरेक्ट कांटेक्ट है और तुम मुझे कुछ करोगे तो ये ऊपर से नीचे आएगा। तो पुलिस वाला समझा कि यार ये तो मोदी का आदमी है और कुछ लेने के देने पड़ जाएंगे, बोले इसको भगाओ यार। तो बोले तुझे ट्रेन में बिठा देते हैं, बुड्ढे को बोला, बोले ट्रेन में बैठोगे तो वापिस ये लोग आएंगे, मैं ट्रेन में नहीं जाने वाला, मैं अब यहां से कहीं भी जाने वाला नहीं। वो बेचारा 3 दिन तक खाया नहीं कि पुलिस वाले उसको क्या खिलाते, वो भूखे रहे बेचारा। फिर मेरे पे फोन आया उनका, वो पुलिस वाले के पास फोन करवाया मेरे नंबर पे। मैंने कहा एक काम करो, तुम पटना एयरपोर्ट से उसको बिठा दो अहमदाबाद की फ्लाइट के लिए। अहमदाबाद में मैं वहां मेरा हज कमेटी का जो स्टाफ है वो जाके उनको एयरपोर्ट से पिकअप कर लेगा, क्योंकि ट्रेन में हमको भरोसा नहीं है। एयरपोर्ट में चले गए फिर तो क्या है कोई तो उन्होंने वो महाराज को एयरपोर्ट पे वहां बिहार की फ्लाइट में हमने वहां से भेजा टिकट फैक्स से, और वो फिर वहां बिठाया और फिर बेचारे बड़ी मुसीबत से वो आए। कहने की बात क्या है कि नेता का एक अपना कहते हैं कि वकार होना चाहिए, वकार। मोदी जी ने ये इन 11 सालों में एक भी ऑफिसर को सस्पेंड नहीं किया। उनकी धाक कैसी है कि भाई वो बहुत कड़क है और बहुत सख्त है, ऐसा है वैसे, फिर भी उनकी तो बात दूर की बात गई, अगर उनके किसी सेक्रेटरी का भी फोन चला गया किसी ऑफिसर पे तो उसको पसीने छूट जाते हैं। कहने की बात क्या है कि वो अगर एक अच्छा ईमानदार वहीवट करता है, एक अच्छा शासक है, तो ऑटोमेटिकली जो सिस्टम है वो राइट हो जाती है। और ये हिंदुस्तान अगर ये पीएम बनते हैं और इंशाल्लाह बनेंगे तो ये सिस्टम को सही होना है, इसमें कोई शक नहीं, उसको होना पड़ेगा।
टिकट देंगे इंशाल्लाह। गोपाल कृष्ण भट्ट, मैं यहाँ का दुर्गा माँ का टेम्पल का प्रीस्ट हूँ। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मैंगलोर में आए और आपने एक ऐसा माहौल पैदा किया कि जहाँ से यहाँ सद्भावना पैदा हो, और आपने ना कि सिर्फ एक मुसलमानों का विकास का बोला, लेकिन मैं समझता हूँ आपने एक सद्भावना का एक बीज यहाँ पर मैंगलोर में गाड़ा है। मैं बहुत खुशी पैदा कर रहा हूं कि एक नॉन पॉलिटिकल, यहाँ पर कोई भी भाजपा का चिन्ह नहीं है, एक देश के हित के लिए यहाँ मुसलमान और हिंदू इकट्ठा हुए। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि ये खुली मंच पे एक आसमान के खुली आसमान के तरह ये बड़ा एक कार्यक्रम हो, जिसमें एक मुसलमान नेता जो कि आप दोबारा यहाँ मैंगलोर में आए और एक हिंदू नेता, एक सद्भावना से एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ मैंगलोर में होना चाहिए। और एक मैंगलोर यहाँ एक कम्युनल राइट के लिए जाना जाता है। मैंगलोर ही ये देश के उदाहरण हो, जो एक बहुत बड़ा सद्भावना के गांव से ये मैंगलोर जाना जाए। और मैं आपसे विनती करता हूं कि आप दोबारा यहाँ आए, और मैं यहाँ पर जो भी भाजपा के नेता यहाँ पर बैठे हुए हैं उनसे भी आग्रह करता हूं एक बड़ा आसमान के नीचे बड़ा एक कार्यक्रम हो, इसलिए आपको एक मैं विनम्रता से विनती करता हूं। एक तो पहले आपने जब आपने शुरू किया तब आपने एक टेररिज्म के बारे में बताया, जो कि अभी वर्ल्ड वाइड एक बहुत चर्चा का विषय है। तो अगर आपने जिक्र भी किया कि कुरान में लिखा है कि किसी भी औरत या बच्चे को अटैक करने के लिए हमें परमिशन नहीं है, तो फिर क्यों लोग इस टेररिज्म को इतना जोड़ते हैं मुसलमानों से? क्यों अगर सभी लोग हम भी एक अच्छे नेशन के लिए अगर हमें काम करना है, तो हम कैसे इसको छोड़ के ऊपर जा सकते हैं इस टेररिज्म के प्रॉब्लम को? और एक मुद्दा है कि इशरत जहान, जो कि गुजरात में एक इंसिडेंट हुआ, उसके बारे में अगर आप कुछ हमें बता सकें। अब मैं आपसे एक सवाल ये करूंगा कि टेररिज्म को ज्यादातर आप कब से जानते हुए? करना शुरू किया था जब भी न्यूज़पेपर में देखती हूँ टेररिज्म, पहले पाकिस्तान और भारत के अलावा मैं कुछ नहीं जानती थी। टेररिस्ट का मतलब पाकिस्तान था, लेकिन अब जब मुंबई में अटैक हुए, बाद में बहुत सारे जगहों में, तब उसके बारे में दायरा इसमें ऐसा है कि टेररिज्म ज्यादातर उसको कहते हैं कि एक ऐसी ब्रांड है कि ज्यादातर उसको पब्लिसिटी मिली बिन लादेन से, अगर मैं सही हूं, ठीक है? हाँ, बिन लादेन जो अफगानिस्तान में जाके ये पूरा नेटवर्क खड़ा किया, आपको ये पता है, आपको भी पता होगा बिन लादेन को किसने खड़ा किया? हिलेरी क्लिंटन ने, अभी मेरे पास मेरे मोबाइल में उसकी पूरी क्लिप है, हिलेरी क्लिंटन ने अभी स्टेटमेंट दिया कि रसिया को तोड़ने के लिए, यूएसएसआर को खत्म करने के लिए, बोले हमने ही इनको वहां पे पूरा असलाह दिया, और एक्चुअली जिहाद की तरफ और इन सारी चीजों की तरफ ले जाने वाले जो साहित्य जो थे वो भी इन्होंने मुहैया कराए और भड़काया, और उन लोगों को बाकायदा ट्रेनिंग देके खड़ा किया, मदरसों में बच्चों को भी खड़ा किया। यानी ये इसके जो रूट्स, जो बीज डाले थे, वो अमेरिका ने डाले थे। और हकीकत तो बिल्कुल है, कुरान शरीफ में 5वें चैप्टर में ये लिखा है कि किसी भी निर्दोष, जिसने किसी भी निर्दोष की हत्या की उसने मानवता की हत्या की, और जिसने किसी निर्दोष को बचाया उसने मानवता को बचाया। यानी कुरान में ह्यूमैनिटी, मानवता का पूरा लिखा हुआ है, और ये कुरान कभी भी इजाजत नहीं देता। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 60 स्टेटमेंट्स ऐसे हैं, ऐसे तो बहुत ज्यादा है, लेकिन ऑथेंटिक 60 हदीस जिसे कहते हैं स्टेटमेंट पैगंबर के, वो टेररिज्म के खिलाफ है। यहां तक लिखा है कि जो दहशतगर्द है वो हम में से नहीं है। पैगंबर ने यहां तक कह दिया कि उसका हमारे से यानी इस्लाम से कोई लेना देना ही नहीं। लेकिन क्या हुआ कि आप समझ सकते हैं कि वो लोग ने तो टेररिस्ट हो गए, उनको खत्म करने के लिए एक बहाना था अमेरिका के पास। अब हुआ क्या कि जैसे कि अमेरिका ने कोई मिसाइल अटैक कर दिया, उसमें एक घर में 10 लोग थे, 8 लोग मारे गए। अभी तुम हो, तुम्हारे माँ बाप मारे जाते हैं, तुम्हारे बच्चे मारे जाते हैं, तो कोई की बीवी मारी जाती है, घर में कुछ रहा ही नहीं, घर पूरा बर्बाद हो गया।
तुम्हारे माइंड में कैसे ख्याल होंगे? क्या मेरी जिंदगी तो कुछ किसी काम की नहीं? अब वो चले जाते हैं फिर ऐसे लोगों के पास, और फिर ऐसे लोग उनको ट्रेन करके एक बदले की भावना उनके अंदर भड़का के फिर टेररिज्म बढ़ता जाता है। तो वी हैव टू ऑल्सो फाइंड द रूट्स ऑफ टेररिज्म। रूट तक जाना पड़ेगा कि ये टेररिज्म किससे बढ़ता है। इराक में जो हो रहा है उससे टेररिज्म बढ़ा, सद्दाम के शासन को खत्म किया, आज तुम इराक की हालत देखो, क्या उसका डेवलपमेंट हुआ? अभी इन्होंने लाए ये अमेरिकन अरब स्प्रिंग, ये पूरा अमेरिकन कॉन्सेप्ट है। अरब स्प्रिंग, फाइट फॉर द फ्रीडम, ये कोई फ्रीडम की फाइट है? पूरे देश को तबाह कर देते हो, 35% बच्चे यतीम हो जाते हैं, 30% बच्चे औरतें बेवा हो जाती है, ये फाइट फॉर फ्रीडम है? 2-4 सरफिरों को मारने के लिए तुम लाखों को मार देते हो, फिर उसमें टेररिस्ट नहीं बढ़ेगा तो और क्या हो? यानी ये तो देखो, ताहिरुल कादरी साहब ने अभी जो लेटेस्ट बुक लिखी, अगर आप वो पढ़ भी सकते हैं, वो वेबसाइट पे भी है, वो वेबसाइट पे भी है, 600 पेजेस की है। उसमें कोई दूसरी बात नहीं, सिर्फ कुरान और हदीस है। कुरान और हदीस से ही वो 600 बुक की पेज है, और उसको आज तक वर्ल्ड में किसी ने चैलेंज नहीं किया कि इस्लाम इज स्ट्रिक्टली अगेंस्ट ऑफ टेररिज्म। उसमें बिल्कुल ये साफ लिखा है। लेकिन कुछ लोग उनको देखे, जैसे कि भाई महाभारत हुआ, रामायण हुआ, ऐसे हर धर्म में उसकी कोई हिस्ट्री तो है कि जब असुरी शक्तियां सामने हो कि जो ह्यूमैनिटी को लिए, मानवता के लिए, संस्कृति के लिए खतरा रूप हो, तो वो अगर हम पर अटैक करती हो तो उसका मुकाबला करना पड़ता है। ऐसी कुछ आयतें और इंसिडेंट है, उसको लेकर वो लोग ये सारी चीजों को भड़काकर मिसगाइड करने का काम करते हैं। उसमें हमारी जिम्मेदारी बनती है। बेसिकली हम जो लीडर्स है, स्पिरिचुअल लीडर है या रिलीजियस लीडर है, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को सही इस्लाम का पैगाम पहुंचाए, और साथ में मीडिया की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और प्रजा में अवेयरनेस। देखो, ये सारी चीजों के लिए जब तक प्रजा में अवेयरनेस नहीं आएगा, आप जब तक नहीं पुकारोगे, तब तक वो आप या ना फिर वो आप दिल्ली वाला मत ले लेना जब तक प्रजा में से ये आवाज नहीं आएगी, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। और इशरत जहां का जो केस था, देखो ये कोई भी इंसिडेंट ऐसा हो कि जो खास तौर पे एनकाउंटर, बहुत आपको फ्रीली कहता हूं मैं, थोड़ा स्पष्ट वक्ता हूं, जो क्लियरली बोलने में मानता हूं। पता नहीं कुछ प्रोटोकॉल क्या हो, लेकिन मैं सच्ची बात बोलता हूं कि एनकाउंटर के बारे में आप मुझे बताओ, तुम्हारा क्या व्यू है? एनकाउंटर कितने सही होते हैं, पहले ये बताओ। एनकाउंटर पूरा का पूरा फेक है, पूरा एनकाउंटर, ऑल द एनकाउंटर्स। इंडिया में अभी तक जितने भी एनकाउंटर्स हुए उसमें कितने सही हुए? पूरा। आपका क्या कहना है खुद का? सर, एनकाउंटर लाइक होना अगर टेररिस्ट सच्ची में वो टेररिस्ट हैं, अगर इंफॉर्मेशन प्रॉपर हो तो एनकाउंटर ठीक है, क्योंकि जब तक कोर्ट में जाकर केस सॉल्व होगा वो टेररिस्ट वैसे ही मार चुका हो। जस्टिफाई तो नहीं कर सकते ना, लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ यू कैन जस्टिफाई, ठीक है? अकॉर्डिंग टू लॉ अभी देखो कर दिया, वो अगर फैक्ट साबित हो गया तो क्या होगा? मरेगा कौन? पुलिस वाला मरेगा, गवर्नमेंट मरेगी। तुम कहते हो कि होना चाहिए, लेकिन कहने की बात यह है, खैर ये तो एक अलग इश्यू है डिबेट का कि एनकाउंटर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लेकिन कहने की बात यह कि एनकाउंटर ज्यादातर फेक होते हैं। 800 एनकाउंटर्स हुए हिंदुस्तान में जिस साल ये इशरत जहां वाला केस हुआ था, और गुजरात में सिर्फ 7 एनकाउंटर हुए थे। 800 एनकाउंटर्स ऑल इंडिया में हुए थे, उसमें ज्यादातर कांग्रेस रूलिंग स्टेट्स में हुए थे, और उसमें मुस्लिम्स भी मारे गए और हिंदू भी मारे गए। क्या उन एनकाउंटर के बारे में कभी रिसर्च हुआ कि वो सही मरे या गलत मरे? नहीं हुआ। इशरत के बारे में ये आईबी के क्लियर कट रिपोर्ट थे कि उसके आईएसआई के साथ ताल्लुकात थे, उसमें कोई डाउट नहीं है, वो और ऑन रिकॉर्ड पर है वो। फिर भी एनकाउंटर होता है, जैसे कि आपने कहा कि आप कहते कि करना चाहिए क्योंकि वो जाएगा कोर्ट में, ये वो, क्योंकि बहुत सारे स्टेट में ये चलता ही है। तो मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ गुजरात जो है कोई हिंदुस्तान के बाहर का मुल्क है कि हिंदुस्तान के अंदर ही है?
गुजरात के लिए सब रूल अलग होने चाहिए, मोदी के लिए सिर्फ रूल अलग होने चाहिए। दोनों आंख से बराबर देखना, एक सिक्के की दोनों की तरफ देखो। हिसाब तुम भी दो, हिसाब हम भी देंगे, किसी एक के पास हिसाब मत लो। तो मेन स्ट्रीम आने से कौन रोक रहा है, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है मुसलमान मेन स्ट्रीम में नहीं है, बहुत कम है। मेन स्ट्रीम यानी अगर राष्ट्रीयता की बात हो, अगर कुछ जैसे आप है, ऐसे बहुत मुसलमान नहीं दिखते हैं। ऐसे मुख्य वाहिनी में फाइन मुख्य वाहिनी में लाने के लिए कौन रोक रहा है? वो इस्लाम ही रोक रहा है, या जो अलग जैसे हिंदुइज्म यहां रोक रहा है, या ये शासनवाद रोक रहा है? कौन रोक रहा है? देखो, इसमें ऐसा है कि मैं आपको बहुत फैक्ट कहूं कि मुस्लिम्स के बारे में और इस्लाम के बारे में बहुत सारी गलत भ्रांतियां लोगों में, प्रजा में फैली हुई है। मुस्लिम्स के बारे में एक तो ऐसी गलत भ्रांतियां लोगों में फैली है कि भाई इसमें रिलीजियस लीडर्स का और मुल्लों का और हमारे जैसे पीरों का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। मैं सच्ची बात बता दूं कि बहुत कम से कम प्रभाव हो तो ये हमारे लोगों का है, पॉलिटिकल बेस पे। जैसे मैं पॉलिटिकल फील्ड में आया ना, तो मुझे अपने मुरीदों को, फॉलोवर्स को कई वक्त तक तो समझाना पड़ा कि भाई मैं जा रहा हूं। यानी हमारे अंदर इस्लाम कम्युनिटी में ये जो पॉलिटिक्स से बहुत दूर रहते हैं, समझो। ये अभी थोड़ा सियासी तौर पे आना भी हुआ। ये कादरी साहब की किताब आई कि सियासत और इस्लाम, कि लोकशाही की भेंट दी थी। ये पैगंबर साहब ने लोकशाही का पहले कॉन्सेप्ट रखा था। खिलाफत को, खलीफा को जो इलेक्ट करना होता है, खिलाफत मूवमेंट जो ये एक बात कि भाई इलेक्शन से हो, तो ये बात, ये कॉन्सेप्ट लाए थे यानी। और दूसरी बात ये है कि किसी कम्युनिटी के रिफॉर्म्स के लिए अब तो सियासत ही एक प्लेटफॉर्म है, सियासत पे आना पड़ेगा। लेकिन फिर भी हमारे आलिम लोग और हमारे जो पीर लोग हैं वो नहीं आ रहे। तो सबसे बड़ी हमारी कमजोरी, आप लोग ये समझते हैं कि हमारे रिलीजियस लीडर है वो इनको ज्यादा एनकरेज करते हैं। ये बात नहीं है। ज्यादा प्रॉब्लम ये है कि हमारे रिलीजियस लीडर जो है वो एंटर नहीं हो रहे हैं इसमें। दे आर नॉट एंटरिंग इन द पॉलिटिक्स। If I can speak, it is the appeasement of every person involved in every function or every party. As what happened today, our culture is to light the lamp just before the function begins. We had reached it much earlier. I don't know if you know. So, this kind of appeasement has to stop once and for all. For us to see that we come in the mainstream. Come in the mainstream, first stop the appeasement of any kind. From anybody, like what happened today, it's nothing. Much bigger appeasement takes place. Thank you. रहेगी लीडर्स माहौल। इससे पहले आपका कर्नाटक का क्या माहौल है मुझे बहुत ज्यादा नहीं पता। मैं गुजरात की बात करूं तो कांग्रेस रूलिंग्स में ये होता था, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, कि कांग्रेस रूलिंग में ये होता था कि हर सिटी में, हर इलाके में एक भाई होता था। भाई को समझते ना? वो लोग जो है वही पॉलिटिक्स में लीडर ज्यादा होते थे, उनका इन्फ्लुएंस होता था। बूथ कैप्चरिंग होता था, कुछ को शराब पिला लिया, किसको पैसा दे दिया, कुछ थप्पा मार दिया, काम हो गया। ये इलेक्शन और ये पॉलिटिक्स फील्ड, हमारे ऐसे आदमी तो कभी उसमें जाने का सोच भी नहीं सकते थे। ये तो मोदी जैसे आए तो हमने हिम्मत की। ये हकीकत है बिल्कुल। उसमें अब ऐसा है कि हमारे जो मजहबी लोग हैं, जो रिलीजियस लीडर, वो ये समझते हैं कुछ कम लोग होंगे एक्टिव। वो ये समझते हैं कि भाई ये हमारी स्पीचेस होती है ना, उसमें भी लिखते हैं कि यहाँ कोई राजनीतिक प्रवचन नहीं होगा, यहाँ किसी राजनीतिक मुद्दे पे बात नहीं होगी, ऐसा लिखते हैं। अब तुम समझो इस पे से भागते पॉलिटिक्स से बाहर। मैं कहता हूं ये जो आज आए हैं, मैं बहुत खुशी हुई, ये जो आप लोग यहाँ बैठे हैं और आप इतने अच्छे से सुन रहे हैं मेरे को, मैं आज खुशी से जा रहा हूँ गुजरात, लौट रहा हूं तो, कि आप लोगों को एक्टिव होना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ इसी पार्टी में आओ या इसी का ये करो वो करो, जो भी आपको ठीक लगे वो करो, जो आपको सच्चा लगे, जो आपको अच्छा लगे वो करो, जो आपका दिल सही तौर पे गवाही दे और आपको ऐसा लगे कि नहीं बिल्कुल ये सही है। मैंने मेरे व्यूज रखे आपके सामने, ये जरूरी नहीं कि आप मेरे से बिल्कुल सहमत हो जाए, लेकिन इतना मैं ईमानदारी से कहूंगा कि मैंने जो कहा वो सच कहा है और मैंने हकीकत कही है।
लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको कि आपके व्यूज अपनी जगह पे होना चाहिए, आपको भी एक अपना है, लेकिन आगे आना पड़ेगा। अच्छे लोगों के लिए, जो एजुकेटेड लोग हैं, कभी कुछ डॉक्टर्स ये समझते हैं कि भाई मेरा तो फील्ड ये है, एडवोकेट्स ये समझते हैं कि भाई मेरा फील्ड ये है। ऐसा नहीं है। जो एजुकेटेड लोग हैं, जो रिलीजियस पर्सनालिटीज है, उनको पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा, और वो आएंगे तभी ये पब्लिक मेन स्ट्रीम में आएंगे। जो नेता होता है, चाहे वो रिलीजियस हो, मैं तो कहता हूं डॉक्टर भी एक नेता है, क्योंकि वो एक डॉक्टर के पास हर रोज कितने पेशेंट आते, इसमें मैंने कोई डॉक्टर भी बैठे हुए थे, बराबर, उनको कितने कितने लोग मिलते हैं पता है, और पूरे एक साल में कितने लोगों को ये इंटरेक्ट करते हैं, और इनको अगर आता है ना तो इंसान वो अपना समझ के आता है, समझे बात। लेकिन मैं मानता हूं कि ऐसे लोगों के लिए न कि सिर्फ उसकी जिस्मानी तकलीफों को दूर करे, लेकिन साथ में जो सोशल परेशानियां हैं वो भी दूर हो, और समाज को एक मेन स्ट्रीम मिले। और मेन स्ट्रीम, हिंदुस्तान क्योंकि एक लोकशाही मुल्क है, तो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म के बिना नहीं हो सकता, और पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म के लिए तुमको ऐसे हाथों में गवर्नमेंट देनी पड़ेगी कि जो ईमानदारी से काम कर सके। गुजरात में हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये फख्र के साथ कह सकता हूं, अलल ऐलान के साथ कह सकता हूं, मैं कितनी डिबेट करता हूं, और मैं आज भी मैं इसीलिए आपको कह रहा हूं कि आप गुजरात में आओ। बिल्कुल बिल्कुल सद्भावना है, पहले तुष्टिकरण नहीं है, सद्भावना है। हमने पहले ही बोल दिया कि ये तो हमारा है, जस्टिस फॉर ऑल, अपेसमेंट फॉर नन, ये हमारा इक्वेशन है, मैं पहले भी बोल गया इसमें। ये तुष्टिकरण नहीं करेंगे हम, सबका साथ सबका विकास, ये होगा। और मैं कहता हूं कि मोदी हिंदू है तो हिंदू रहे, क्यों बात है भाई, वो हिंदू है, हिंदू रहे। अरेबिक कंट्रीज है, वहां तुम किसी मुस्लिम लीडर्स को ये कहोगे कि भाई तू ये कर, जा वो जा, या तिलक कर, ये कर वो कर, नहीं, उससे क्या लेना देना है हमको। हमारे लिए जो शासक है, सोनिया गांधी क्रिश्चियन है, क्या करोगे तुम। शासक हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, डजंट मैटर, हमसे उससे कोई लेना देना नहीं है। सोनिया गांधी भारत से नहीं है। नहीं, कहने की बात यह है कि वो भी कहा मुस्लिम है। सोनिया गांधी को तुम वोट करते हो, मैं कहने की बात है कि मोदी को अगर हिंदू है इसके लिए तुम दूर भागते हो, एक तो तुम सोनिया गांधी से को क्यों वोट करते हो, वो क्रिश्चियन है। और वाजपेयी जी थे तो इराक में के ऊपर हमले के खिलाफ यूएन में वोट किया भारत ने, और अभी ईरान पे जब सैंक्शन लाने की बात आई तो ये सोनिया गांधी ने ईरान के खिलाफ वोट दिलवाए, ये पर कितने मुसलमानों को पता है। क्यों, तो अमरीकियों के हाथ बिके हुए हैं, क्यों मोदी जी को नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो पूरा डील हो चुका है उनके साथ। और तुम्हारे लिए सबसे बड़ा कौन सा मुल्क, इस्लाम के लिए सबसे बड़ा खतरा कौन है, आप बोलो, मैं नहीं बोलता, बराबर है। और उसको इजराइल को बैकिंग कौन करता है, उसका कौन है, सीधी बात है। तो मैं ये कहता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों हिंदू समाज की तरफ लाते हो, हिंदू समाज से कोई खतरा ही नहीं है। हिंदू समाज से तो एक प्यार मोहब्बत के साथ, वी मे हैव अराइव ऑन डिफरेंट बोट्स बट वी आर नाउ ऑन द सेम शिप। जाति प्रदेश पंथ के वादों को भूलकर हमें राष्ट्रवाद के मंच पर एकत्रित होना पड़ेगा, तभी हिंदू का विकास होगा, तभी मुस्लिम का विकास होगा। ये एक विधाता ने लिख दिया है, एक मुकद्दर में लिख दिया है खुदा ने कि ये भारत में जो हम पैदा हुए हैं, इसी मिट्टी से पंच महाभूत से पैदा हुए हैं, और इसी मुल्क में हमको साथ में रहना है। ये जहाज तय हो गया हमारा। वी में है अराइव ऑन डिफरेंट शिप्स, हम अलग अलग होड़ियों के अंदर, नावों के अंदर अलग अलग आए हैं, लेकिन आज इस बड़े शिप के अंदर, भारत रूपी जहाज के अंदर हम सब साथ में सफर कर रहे हैं। ये दरिया है, विश्व रूपी जो दरिया है, जब उसमें सब हम साथ में सफर कर रहे हैं, अब जब हम साथ में सफर कर रहे हैं तो ये जहाज की सलामती में हमारी सलामती है, ये जहाज की सलामती में हिंदू और मुसलमान की सलामती है, ये जहाज के विकास में हिंदू और मुसलमानों का विकास है। तो हमको ये तय हो चुका है। अब कौन हमको लड़ाना चाहेगा, अब हम अंदर अंदर लड़ेंगे, मरेंगे, कूटेंगे, जहाज डूबेंगे सब। पड़ोसी मुल्क बॉम्ब मारेगा तो वो समझ के नहीं मारेगा कि इसको मारेगा या उसको मारेगा, वो किसी को भी मारेगा। कहने की बात यही है कि इसीलिए हमको सबको साथ मिलके काम करना पड़ेगा।
और इसको तो जरूरी है। देखो मैं आपको अभी भी चाहता हूं, अल मोसाद ये चाहती है कि हिंदू और मुसलमान लड़े, या बहुत फैक्टली और फर्मली कहता हूं मैं, अल मोसाद ये चाहती है कि यहां हिंदू मुसलमान लड़े, यहां दंगा हो या आतंकी घटना हो। और कभी ऐसा भी होगा कि बाहर वाला आके यहां कुछ कर जाएगा, तुम्हें लगेगा हिंदू कर गया, उसको लगेगा मुसलमान कर गया, फिर तुम लड़ते रहो, एक्शन रिएक्शन होते रहे और खत्म मुल्क होगा। भारत महासत्ता बनेगा तो किसको फायदा होगा? सीधी बात है। अभी मोदी जी पीएम बनेंगे तो गुजरात को फायदा होगा, क्योंकि 10 साल से हमको परेशान कर रहे हैं सेंट्रल वाले, ये नहीं दे रहे वो नहीं दे रहे, सीधी बात। तो अगर तरक्की होगी तो सबकी तरक्की होगी, विकास होगा तो सबका विकास होगा। जैसे गुजरात में हुआ, पर कैपिटा इनकम हमारी सबसे हाईएस्ट है, गुजरात के मुसलमानों की पर कैपिटा इनकम सबसे हाईएस्ट है, पर पर्सन बैंक बैलेंस सबसे हाईएस्ट है, ज़कात हम सबसे ज्यादा हाईएस्ट निकालते हैं, सारी चीजें। हज के लिए मैं हज कमेटी का चेयरमैन हूं, सबसे ज्यादा एक्सेस एप्लीकेशन हिंदुस्तान में अगर कहीं है तो गुजरात में। और गुजरात ने पूरा अपना दिल का दरवाजा खोल के रखा है, कर्नाटक वाले आ जाओ, यूपी वाले आ जाओ, बिहार वाले आ जाओ, आंध्र वाले आ जाओ, सबके लिए दिल का दरवाजा खोल के रखा है। रोजगारी लेने के लिए सब गुजरात में आते हैं। अगर गुजरात रोजगारी देने में सक्षम ना होता तो गुजरातियों को तो रोजगारी देता है, बाहर वालों को भी रोजगारी देता है। कहने की बात है ये, ईमानदारी से काम करो तभी हो सकेगा। और चाहो ना चाहो, देखो जो होना है वो होना है। दिल ये कह रहा है कि मोदी जी पीएम बनेंगे और ये सब कुछ होगा। आपको मैं ये कहता हूं कि आप भी उस सफर में साथ हो जाओ। Hello, I'm Dr. Dinesh from Mangalore. For Modi Sahab to become the Prime Minister, you have a pan-Indian representation. North India, okay, recently concluded elections, 2-3 states you got the majority. But in South India, whom you are depending upon? See, the Karnataka, Andhra, Maharashtra, you have the other parties. And Tamil Nadu, we don't know where the Amma will take the stand. Who is your support in the South India? Because for him to become, you need a entire India from Kashmir to Kanyakumari. What is the source from South India? बिल्कुल मैं जानता हूं इसके साउथ गुजरात में। देखो कर्नाटक में तो हमें पूरी उम्मीद है कि हम मेजॉरिटी लेके आएंगे। आंध्र प्रदेश में भी जो तेलंगाना वाला इश्यू है उसके लिए हम काफी पॉजिटिव है। हमारे नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बांदादू दत्तात्रेय जी, किशन रेड्डी जी, वहां भी अच्छा है। और हमको साउथ में ऐसा है कि समझ लो कि 100% हम अगर सक्सेसफुल नहीं होते, लेकिन फिर भी इस मर्तबा मैं जहां तक जानता हूं कि मीडिया ने जो सर्वे किया है कि जो कमल को नहीं जानते थे वो मोदी जी को जानते हो गए। जो कई ऐसे स्टेट है कि जो सर्वे किया मीडिया ने कि भाई तुम कमल को जानते हो, पब्लिक को पूछा तो बोले नहीं जानते, मोदी को जानते, बोले जानते। तो कहीं ऐसा भी होगा कि मोदी की वजह से कमल को जान जाएंगे। तो ये ओवरऑल जो है हमें पूरी उम्मीद है कि साउथ में से हमें ये इस मता एक अच्छा नंबर फिगर मिलेगा जो हमें नेशनल गवर्नमेंट बनाने के लिए वो हमारे लिए काफी होगा। चिश्ती साहब, जस्ट एक फॉलोअप कमेंट एक्चुअली। मैं यूएसए में 8 साल रहा और रिसेंटली 3 महीने पहले मैं मैंगलोर वापस मूव हो गया। आपका 2 क्वेश्चन पहले आपने कुछ कमेंट किया अबाउट नेशनल इंटीग्रिटी और ऑनेस्ट। तो यूएस में मेरा एक एक्सपीरियंस रहा कि द रीजन वाई यूएस इतना डेवलप्ड है क्योंकि उसके 3 है, एक एजुकेशन, एक ऑनेस्टी और देशभक्ति। और मेरे को लगता है फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ व्हाट आई हैव सीन कि मोदी जी से दैट इज वन इंस्पिरेशन दैट वी ऑल यंग जनरेशन गेट की, एक एजुकेशन, एक ऑनेस्टी और एक देशभक्ति। और इसी के कारण हम आई थिंक दैट इट इज एज यू आर सेइंग कि सब लोग when we are united and when we have that देशभक्ति, that's when we can go in that विकास route, and that's why I appreciate that आप मैंगलोर और इस लेक्चर में भाग किया। थैंक यू। पूछना चाहता हूँ, आप यहाँ पे मैंगलोर आ गए और ये सब बातें सिर्फ आपसे ही जाननी थी क्यों? मुझे लग रहा है बाहर के माहौल से हमें कुछ जानकारी नहीं मिल रही है। स्पेशली हमारे मुस्लिम भाई लोगों के लिए आपकी आना जरूरत पड़ा क्या, या बाहर मीडिया वालों से हमें कुछ, या बाहर के माहौल से हमें जानकारी नहीं मिल रही क्या?
आप ही को आना पड़ेगा थोड़ा हम लोगों को गुजरात के बारे में एनलाइटन करने के लिए। वही बात है कि भाई, हालांकि मैं कई मर्तबा ये होता है कि जो मीडियम होता है आप तक, मेरे तक पहुंचने का, गुजरात को यहां तक पहुंचने का, वो मीडियम जिस सोर्स से यहां आता है वो सोर्स में प्रॉब्लम है। वो चाहे मीडिया हो, टेलीमीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, तो जो सारी प्रॉब्लम्स है यही वजह है कि, और इसीलिए तो आना हुआ ताकि मेरा आज रूबरू यहां आना हो तो आपको पता चले। और मैं तो आपको बुला रहा हूं वहां पे कि आप खुद वहां आइए, और मैं ये नहीं कि मैंने कह दिया और आप तुम मान लो, आप जो हकीकत है वो अपनी नजर से देखिए। Okay, thank you, sir. Enlightening thought for us. Before we conclude, one more guest is on the dais now. I would like to request him to speak a few words. Mohammed Badur, yes, please. ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮತ್ತು ಇಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದಂತಹ मुफ्ती साहेबರಿಗೆ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जो माहौल इधर बहुत अच्छा है, ये माहौल को ख़राब करने के लिए मैं नहीं चाहता हूँ। न मैं बीजेपी हूँ, ना मैं कांग्रेस हूँ, किसी सियासत में मैं जुड़ी नहीं। जो मेरा बात है, हिंदुस्तान का करोड़ों गरीबों का जो आवाज़ मैं उठा रहा हूँ। जहाँ जहाँ दंगा फसाद हुआ है हिंदुस्तान में, ज़्यादा से ज़्यादा हर जगह मैं जाके छानबीन करके आया हूँ। मेरा दोस्तों से पैसा लेके हम खुद किसी ऑर्गेनाइजेशन से मैं नहीं गया। आपका अहमदाबाद, सूरत, हर्षद, मंगरूर और द्वारका, वोका, वो सब जगह गया मैंने। सब जगह गरीबों की एक ही आवाज है, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, एक ही सिक्के का दो चेहरा। मेरा आवाज नहीं है गरीबों का, ना कोई सियासत का जो लोगों को बदनाम करने का मेरा जो ये नहीं है। हम ये कहता हूं मुफ्ती साहब आपको, जो आप एक बात बोला आखिरी को, जो सियासत के लोग एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, कोई धर्म का ठेकेदार नहीं। इसलिए मैं आपका जो बीजेपी को ये कहता हूं, एक बात अलग सिक्का बनाओ, वो कोटे सिक्के नहीं, असली सिक्का, तो धर्म से हटकर सब प्रजाओं को एक ही नजर से देखे तो इंशाअल्लाह तो हर मुसलमान कांग्रेस को छोड़ के आपका पीछे आएंगे। मुसलमान और जो कांग्रेस ही करता है यार 60 सालों से, अगर आप ही वही करते हैं तो कोई भी मुसलमान नहीं, हिंदुस्तान का कोई गरीब नहीं आपका साथ नहीं आता है। क्योंकि हम एक कौम के बारे में नहीं बोलता हूं मैंने, हिंदू में गरीब है, क्रिश्चियन में गरीब है, मुसलमानों में गरीब लोगों में। सदियों से हम देखते हैं राजाओं के जंग में गरीब लोग मरते हैं। इस सियासत में जो गरीबों को बलि चढ़ाकर तख्त पर बैठते हैं, क्या यही चलता रहेगा? और सदियों से जो चलता है उसको रोको और एक अगला एक ढूंढो, एक रास्ता ढूंढो जो गरीबों को बचाकर कैसे हम लोग सियासत कर सकते हैं। क्यों? वोट देने वाला गरीब है, बलि चढ़ने वाला भी गरीब है। आज तक कोई बड़े लोग मरे क्या? कोई लीडर लोग मरे? कोई मुसलमान लीडर लोग मरे? कोई हिंदी लीडर लोग मरे हैं क्या? कोई क्रिश्चियन लीडर लोग मरे हैं क्या? नहीं, जो मरे हैं हिंदू। कोई हिंदू कोई मुसलमान को नहीं मारा है, कोई मुसलमान कोई हिंदू को नहीं मारा है। और जो मारा है इधर सियासत लोगों ने मारा है। इसलिए मैं सब सियासत का जो लोगों से, नेताओं से
ये फरियाद करता हूं, जो गरीबों को बचाकर इधर सियासत करो और गरीबों को उनको जीने का हक दो, ये मेरा एक फरियाद है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Thank you, sir. From this, we have come to the end of this, the debate and the true facts. The meanwhile, request, I would like to thank. I would like to thank Sufi M.K. Chisti ji for your wonderful enlightening thought. I think, ladies and gentlemen, give him a round of applause. I think he had discussed a lot of facts, a lot of figures. Meanwhile, I request our mentor of Namo Brigade, Mr. Naresh Chennai, to hand over the memento to Sufi M.K. Chisti ji for all his enlightening thoughts. Ladies and gentlemen, so Naresh Chennai to Sufi M.K. Chisti ji. It's a traditional culture of our South Kendra district. Okay, from this we are conclude this show. On the back side of you, the breakfast is ready, so please have your breakfast. Thank you once again. Again, we'll come back with the one more the unique idea from Namo Brigade. Till then, goodbye. So,